हाय गाइस, शिवांश, अनिकेत, वीडियोस ऑन कर लो यार। Hi, Saurabh. हाय। हाय। सो हेलो गाइस, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब माइक्स म्यूट रखना। कोई क्वेश्चंस हो तो चैट में डालते रहना, विल टेक अ लुक एट देम। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द टॉक में विल डिस्कस ओवर द जनरल टॉपिक्स, और कुछ रह जाता है जो तुम्हें पूछना हो तो वो तुम चैट में डाल देना। विल लुक एट दैट आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। ठीक है। सो पहले हम इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। अनिकेत। So, hi guys. I am Aniket Goyal and I am a fourth year student at IIT Roorkee from Computer Science branch. So, I have explored competitive programming and development in my college life, and I have been to ICPC. I've sat for internship tests. I've sat for placements. So, I think I'll be able to answer most of your queries. Shivansh. Okay, awesome. Shivansh. Hi everyone. So I'm Shivansh, currently a fourth year undergrad at IIT Roorkee, pursuing computer science. So I have explored development, web development to be specific, in my 4 years. I've done GSOC with Wikimedia organization in my second year. Also, I sat for placements this year. So hope my experience help you guys. ओके। मैं भी अपना दे देता हूँ। हाय गाइस, आई एम सौरभ सिंह, फोर्थ ईयर सीएससी अगेन। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतनी नहीं करी है जितनी अनिकेत ने करी है। विल बी गाइस बेटर। मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्टिंग के 2-3 इयर्स में ज़्यादा किया है। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा बहुत रिसर्च एंड बाकी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स भी काफ़ी काफ़ी दिए हैं टेस्ट, सो उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। So let's get started. Let's start with how to start with competitive programming. वो सब क्या होती है? तो अनिकेत, I think you can take on this part. Okay, so before how to start competitive programming, पहले ये डिस्कस करते हैं कि competitive programming में ऐसा होता क्या है। तो मतलब मेनली competitive programming is solving programming questions जो मेनली aptitude या फिर ऐसा DSA based होते हैं, data structures and algorithms based होते हैं। तो you solve problems online. So when you compete solving those problems, that is competitive programming. So you can start competitive program. So competitive programming is one of the easiest field जिसको तुम बहुत ही easily start कर सकते हो, क्योंकि basically इसके लिए कोई prerequisite नहीं चाहिए और इसके लिए बहुत ही little guidance की ज़रूरत है। मतलब you can find mostly everything online. तो इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना कंपेयर टू डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग काफ़ी ईजियर होता है। तो बेसिकली प्रीरिक्विजिट इज दैट यू नो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे इन इन फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इट इज़ रिकमेंडेड कि जो स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए वो सी प्लस प्लस होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इट इज़ फास्टर रिलेटिव टू पाइथन और जावा, and it provides many libraries. STL is a library in C++, so it provides many data structures that you can use easily. तो बाकी ऐसे स्टार्ट करने के लिए there are many platforms like Codeforces, A2OJ, and CodeChef and AdCoder. So you can start solving problems on them. So directly start solving problems. फिर ऐसा contest होते हैं इन्हीं platforms पे. So you can give contests on these platforms. So you can get the idea of what competitive programming is, and you can know whether it interests you or not. All right, cool. Aniket, some people also have this question like, what is the difference between competitive programming and data structures and algorithm (DSA)? And like, how do you manage both of them? Do you need to do DSA, or is competitive programming enough? Like, what should they do? So basically, DSA is a thing that competitive programming covers. DSA is data structures and algorithms, and what competitive programming is, that competitive programming usually uses DSA type of problems when it is having contests. So mainly इसको focus किया जाता है.
in competitive programming. So in data structures and algorithms, you mainly cover different types of data structure like stacks, queues, heaps. Whereas in competitive programming, you tackle problems on these. So competitive programming is kind of an application of DSA. When you are handling DSA or when you are studying DSA, you will get more of a theoretical knowledge in the topic about how different data structures work, how the complexities are when using them. Whereas in competitive programming, you will be tackling the applications of those DSAs in forms of questions. Okay, awesome. Also, some children have this doubt कि how much time should they spend और academics के साथ कैसे balance करना है. तो उस पे कुछ बोला जा सकता है कि अपने हिसाब से कर लो. See, in terms of like academics are equally important uh, with competitive programming. One cannot say that कि academics ज़्यादा important है या competitive programming ज़्यादा important है. But एक bare minimum cover करने के बाद academics का जो which you can set according to yourself, वो bare minimum करने के बाद give the most time to competitive programming. क्योंकि competitive programming के काफ़ी benefits रहते हैं कि as it is going to be discussed कि competitive programming का placement और internships में use होता है और प्लस प्लस अलॉन्ग विद दैट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज लग जाती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी तुम फॉलो कर रहे हो, और अलॉन्ग विद दैट डीएसए का ऑफ कोर्स. अच्छा, ओके ओके. मतलब ओके. जैसे टू ऐड ऑन दैट, जैसे अकेडमिक्स यूजुअली रिक्वायर एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम कि इतने में सिलेबस यूजुअली कवर हो जाता है. बट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इट इज़ लाइक कि जितना टाइम दोगे उतना कम है. यूजुअली इट इज़ लाइक जेई जित बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेनली इट इज़ प्रैक्टिस. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इतना सिलेबस डिफाइंड टाइप कोई चीज़ नहीं है कि इतना चीज़ पढ़ ली फिर इट इज़ ओवर. यूजुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सिलेबस बहुत कम होता है, बहुत कम चीज़ें तुम्हें पढ़नी रहेगी, और इट इज़ मोर लाइक जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सको, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दे सको, तो उससे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखेगा. ओके ओके ओके. ओके. अनिकेत, अगर एक ऐसी मतलब कोई बिगिनर है, फर्स्ट ईयर में है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट विद competitive programming, लाइक बिल्कुल बिगिनर है, तो व्हाट रिसोर्सेज वुड यू टेल देम एंड व्हिच प्लेटफॉर्म वुड यू से कि इधर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. सो इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया था फर्स्ट ईयर में. तो फर्स्ट ईयर में व्हेन आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो मैंने कोड शेफ के बारे में मुझे पता चला था सीनियर्स से और फ्रेंड्स से. तो मैंने कोड शेफ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया. सी मेरे को थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस का आइडिया था, और जिसको आइडिया ना भी हो तो वो बेसिकली आई गेस उनको कोर्सेज में पढ़ाते ही होंगे, और माइनर सी प्लस प्लस सीखना ऑनलाइन सोर्सेज से काफ़ी इजी होगा. बहुत ही विद इन अ वीक यू कैन start solving problems on CodeShell. So you should start with directly solving problems. You do not need to study a lot. पहले अगर तुम पढ़ने लग जाओगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स, तो तुम ओवरवेलम हो सकते हो उसकी टेक्निकलिटीज से और ऐसा नॉलेज से, क्योंकि दे डू नॉट हैव अ नाइस ग्रेडियंट. यूजुअली जो सोर्स होंगे वो दे गिव एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो सारा कुछ कवर कर देंगे उसी में, तो तुम्हें यूजुअली समझ नहीं आ पाएगा कि कहाँ पर आई शुड स्टॉप. तो स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. यूजुअली तुम्हें क्या होगा कि कोड शेफ, कोड फोर्सेस आर द प्लेटफॉर्म्स जिन पे तुम्हें ऐसा ग्रेडियंट वाइज प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. दे टेल द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम अलॉन्ग विद इट, so you can start solving easier problems. तो उनका यूजुअली ज़्यादा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगा फॉर विच यू हैव टू स्टडी अ लॉट, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो वंस यू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक इसमें एक रिसोर्स है A2OJ. देयर इज अ साइट A2OJ. तो इट गिव्स लैडर्स. तो उसमें ऐसा डिफिकल्टी वाइज डिफरेंट लैडर्स हैं.
तो तुम इजी डिफिकल्टी से शुरू करो। सो वंस यू गेट कंफर्टेबल, तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इसमें मेरी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो रही है, तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अब फिर तुम्हारा पढ़ने का पार्ट कब आएगा, जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तुम्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम रखना पड़ेगा एज अ लिमिट, कि हाँ अगर मेरा इतने टाइम तक मैंने ट्राई किया सोचा और वो सॉल्व नहीं हो रहा, सो आई विल गो टू द ट्यूटोरियल्स। और यूजुअली कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम्स होंगे तो उनका ऐसा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं उनके अनाउंसमेंट्स के साथ। तो वंस यू रीड द ट्यूटोरियल एंड तुम्हें उसमें दिख रहा है कि इसमें कोई नया शब्द है, लेट्स से बाइनरी सर्च, तो उन्होंने बाइनरी सर्च यूज किया हुआ है, तो देन यू कैन रीड अबाउट इट। तो उसके बारे में तब तुम स्टडी करोगे, तब तुम उसको एक्चुअली में ऐसा उसको तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि तुम उस ऑलरेडी एक चीज़ पे तुम थॉट प्रोसेस लगा चुके होगे कि ये कैसे होगी ये कैसे होगी। बट फिर जब तुम्हें मेथड पढ़ने को मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे हो सकती है, तो तुम उसको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मी ideal way to proceed with competitive programming, at least at the beginner level to intermediate level, is कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड अलोंग विद दैट तुम पढ़ना शुरू करो अगर कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होता। बट दिस इज मेजरली फॉर फर्स्ट ईयर, जब तुम पे टाइम एक्सप्लोर करने का, व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग द फील्ड। अच्छा, थोड़ा इसे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए भी प्रोसीड बता देगी, वो कैसे प्रोसीड करें। हाँ मतलब जैसे लेट्स से कि तुम सेकेंड ईयर में भी हो, बट लाइक आई सेड कि अगर ये मतलब ये एक्चुअल में ऐसा ईयर सेंट्रिक नहीं है, बट ये तुम्हारे एम सेंट्रिक, कि अगर तुम एक्सप्लोर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को एज अ फील्ड और तुम्हें उसमें ग्रो करना चाहते हो अच्छे से, तब ये प्रोसेस आइडियल है। इसमें तुम इन डेप्थ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में वर्ड्स बहुत तुम्हारे इंट्यूशन हो पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मेजर पार्ट जो होता है वो इंट्यूशन होता है। तुम्हें प्रॉब्लम पढ़ते ही ऐसा इंट्यूशन आना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, और ये इंट्यूशंस यूजुअली प्रैक्टिस से ही आएगा। मतलब यूजुअली तो नहीं, डेफिनेटली ही प्रैक्टिस से आएगा। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये इंट्यूशंस डेवलप करने के लिए तो ये तरीका है। बट लेट्स से कि तुम यू हैव इमीडिएट डेडलाइंस कि हाँ भाई इंटर्नशिप के लिए पढ़ना है, तो इंटर्नशिप में जो कोडिंग राउंड्स होंगे उनके लिए तैयारी करनी है मेजरली, एंड यू हैव लेट्स से 6 months और 3 months, तो थोड़ा तुम्हें प्रोसीजर डिफरेंट करना पड़ेगा। तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सेंट्रिक टू व्हाट दे आस्क इन दिस इन द प्रोसीजर, लेट्स से इन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, तो इनमें जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडल होती है तुम्हें उसके सेंट्रिक तैयारी करनी पड़ेगी। तब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज ऐसे हो जाता है कि पहले तुम्हें टॉपिक्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना बाद में शुरू करोगे, पहले तुम टॉपिक्स पे फोकस करोगे कि हाँ कौन सा टॉपिक है, ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट से बाइनरी सर्च से या फिर लिंक लिस्ट से शुरू किया तुमने, कि हाँ इंटर्नशिप पे तुम्हें पता है कि लिंक लिस्ट इज अ रिक्वायरमेंट, तो तुमने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, फिर तुम उसकी प्रॉब्लम्स पे जाओगे। तो ये डिफरेंट होता है जब तुम लेट से सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और तुम ऐसा उसके लिए कर रहे हो, प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे हो। तो इसमें तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे जैसा इंटरव्यू बिट जैसे। तो इंटरव्यू बिट पे जैसे तुम्हें स्ट्रक्चराइज्ड वे में वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, टॉपिक्स का स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स वो मेजरली पूछते हैं, तो उनमें तुम पढ़ के उनके अंदर तुम्हें उनकी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। अच्छा ओके, अभी इधर एक सवाल आया है, आई थिंक शिवांश बेटर आंसर कर पाएगा। अ गाय वांट्स टू गेट इनटू वेब डी, तो इज इट रिक्वायर्ड टू डू सीपी देयर? Like if you want to get in web development, CP is not required. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें CP चाहिए होगी, बट फिर बात ये आ जाती है कि तुम्हें कभी ना कभी, मतलब तुम जब भी कुछ बना रहे होंगे, अच्छा तुम्हें हो सकता है कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ आ जाए, मतलब तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट तो तुम्हें सीपी नहीं चाहिए, मतलब ऐसे जब तुम स्टार्ट करो। बट तुम जैसे ग्रो करोगे और तुम ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाओगे तो तुम्हें ज़रूरत आएगी, मतलब
हमने भी एक बार ये फेस करा था खुद ही कि हम कुछ बना रहे थे एंड वी वर हैविंग अ ट्री स्ट्रक्चर, मतलब कुछ तो फिर हमें डीएसए वगैरह यूज़ करना पड़ा है। तो इट इज़ गुड कि तुम्हें अगर डीएसए वगैरह का आइडिया हो तो, बट ऐसे प्री रिक्विजिट बिल्कुल भी नहीं है सीपी वेब डेवलपमेंट के लिए। अच्छा ठीक है। अनिकेत, आई थिंक ये क्वेश्चन तू आंसर कर पाएगा। राहुल पूछ रहा है कि मतलब सीपी आल्सो रिक्वायर्स बेसिक मैथमेटिक्स, तो वो कहाँ से देख सकते हैं? आई थिंक गेम थ्योरी एंड ऑल Yeah, का पूछ रहा होगा, या फिर so प्राइम नंबर्स वो सब भी पूछता है। like so it is not as कि CP requires mathematics, तो mathematics is a small part जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की फील्ड में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका एक स्मॉल पार्ट होता है यूजुअली मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर सेंट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, या लेट से अगर उसमें भी थोड़ा डिटेल में जाए तो लेट से स्ट्रिंग का क्वेश्चन है कोई, या ऐसा सेगमेंट्री का क्वेश्चन है, या परसिस्टेंस डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऐसे मैथ्स एक वो है, सब टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, जो काफ़ी यूजुअली रिक्वायर्ड आ ही जाता है, क्योंकि उसका बेसिक्स जो होता है ना वो दूसरे क्वेश्चंस में भी वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स का तुम्हें यूज़ आ जाएगा। ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स काफ़ी हैवीली यूज्ड टॉपिक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो अब उसके लिए तुम्हें ऐसा कोई इतना हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो तुम वो नेट पे एक्सप्लोर करोगे ना तो तुम्हें वो बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका वन ऑफ द सोर्स है, मतलब ये तो काफ़ी ऐसा पॉपुलर सोर्स है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इटसेल्फ। तुम सीपी एल्गोरिदम्स, सीपी डैश एल्गोरिदम्स पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्होंने ब्लॉग्स टाइप लिखे हुए हैं, तो उसमें तुम्हें पूरा डिटेल मिल जाएगा मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे मैथमेटिक्स में जो तुम्हें अभी बेसिक बेसिक चीज़ें कम कवर करनी रहेगी वो मेजरली नंबर थियोरी होगा। तो उसमें यही सब आएगा, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इनवर्स मॉड्यूलो, प्राइम्स का निकालने का मेथड, जीसीडी, दैट्स इट इज़ वेरी ओके इजी। ठीक आई है। थिंक एक वीक में तुम इजीली कवर कर सकते हो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लो पढ़ने के बाद। ओके, गुरविंदर सिंह पूछ रहे हैं कि अगर सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी, तो क्या करना चाहिए? ओके, सो लेट्स से तुम कोई सवाल टैकल कर रहे हो, तो तुम्हें पहले तो सबसे पहले तो उसको उसके बारे में खुद सोचना चाहिए बिना उसका ट्यूटोरियल पढ़े। और फिर लेट्स से तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो विद इन, से यू हैव केप्ट द लिमिट टू बी 2 आवर्स, कि मैं 2 आवर्स तक सोचूंगा और फिर भी सॉल्व नहीं हो, तो फिर तो यू मूव ऑन टू द ट्यूटोरियल। सो इन द ट्यूटोरियल यू गेट टू नो कि हाँ अगर उसमें ये टॉपिक्स रिक्वायर्ड है तो, और तुमने वो भी पढ़ रखे हैं लेट से, और फिर भी तुम्हें वो ट्यूटोरियल ही समझ नहीं आ रहा है, तो इट वुड बी बेस्ट कि, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये पॉइंट होता है, ये बैरियर होता है कि जिसके बियॉन्ड तुम्हें किसी की गाइडेंस या किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें भी तुम्हें मेरे हिसाब से सबसे पहले तो तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए तुम्हारे पीयर्स को, क्योंकि जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो इट इज़ गुड कि तुम किसी पीयर ग्रुप के साथ कर रहे हो, मतलब सो दैट यू हैव समवन टू कंपेयर योरसेल्फ विद, तो उससे तुम्हारी ग्रोथ मैक्सिमम एक्सेलरेट होगी। तो once you so you can discuss that particular problem or particular topic with तुम्हारे जो पीयर्स हैं उनके साथ, और लेट से तुम सब कलेक्टिवली, जो बहुत ही रेयर चांस होगा तुम सबको कलेक्टिवली वो समझ ही नहीं आ रहा, सो देन यू कैन मूव ऑन टू योर सीनियर्स, कि हाँ भाई जो तुम्हें लगता है कि हाँ जिनको अच्छी नॉलेज है या जिनने तुम्हें पहले गाइड कर रखा है तुम उनसे जाके पूछो। आई एम श्योर कि मोस्ट सीनियर्स तो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, तो वो तुम्हें ऐसा वो करेंगे, गाइड करेंगे, क्योंकि they itself came to that position after guidance from someone, so they know the importance. ओके ठीक है। यार एक बार ना, जो भी लोग हैं जो इंटर्नशिप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक बार हैंड रेज कर दो, तो विल हैव एन आइडिया कि इंटरव्यूज डिस्कस करना है फिर सीधा प्लेसमेंट पे चले जाए। तो एक बार फटाफट जो लोग भी इंटरव्यूज इंटर्नशिप के लिए बैठ रहे हैं वो सब एक बार हैंड रेज कर दो। 1 2 3 10 20। ठीक है।
इधर बेस्ट साइड टू लर्न प्रैक्टिस सीपी स्टार्टिंग के लिए तो वुड बी कोड फोर्सेस जो कोड शेफ जो अनिकेत ने बताया था, एंड आफ्टर दैट अगेन ए टू ओजे के लैडर्स यू कैन डू। ओके, काफी लोग हैं, हैंड नीचे कर सकते हो। ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो इंटर्नशिप्स पे मूव ऑन करते हैं। सो एक बार शिवांश, कैन यू टेल अबाउट बेसिक जो इंटर्नशिप्स में सीपी करनी होती है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या आना चाहिए? ओके, तो जैसा निकेत ने भी डिस्कस करा, मतलब डीएसए एंड डीएसए और सीपी के बारे में, तो बेसिकली जो हमारे टेस्ट, मतलब इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही होगा, आइडिया होगा कि फर्स्ट यू हैव अ कोडिंग टेस्ट, उसके बाद अगर तुम वो क्लियर करते हो तो तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो कोडिंग टेस्ट में मोस्टली या तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आएगी या एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस तो मोस्टली मतलब तुमसे हो ही जाएंगे, उसके लिए तुम्हें स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ आ जाता है फिर कॉम्पिटिटिव बेस्ड, मतलब बट यहाँ पे क्या होता है इंटरव्यूज वाले प्रोसेस में कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होते जितने कॉम्पिटिटिव में होते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे होंगे। मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स कवरिंग प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पे ज़्यादा, कि जैसे ट्राई के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और भी स्ट्रिंग्स वगैरह की एल्गोरिथम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो ज़्यादा रहता है इंटर्नशिप साइड। तो मतलब रिसोर्सेज और it is कुछ कहाँ it is से? majorly it is हम्म, majorly in internship test वो majorly तुम्हारी in depth knowledge चेक नहीं कर रहे होंगे, बट तुम्हारी exhaustiveness चेक कर रहे होंगे कि कितना तुमने कवर किया हुआ, कितना मोस्ट टाइप ऑफ थिंग्स तुमने कवर किया हुआ एंड उसके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि दे कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स बट नॉट इन डेप्थ। मतलब एग्जैक्ट। तुमने स्ट्रिंग्स की अगर सारी एल्गो पढ़ रखी होंगी और उनके ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस तुमने टैकल कर रखे होंगे, तो मोर और लेस वो वही क्वेश्चन पूछेंगे लैंग्वेज चेंज करके। हाँ, मतलब वही डिफरेंट एल्गोरिदम, वो चाहेंगे कि तुम्हें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आए बट उनके मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे जनरली। तो बेसिकली इंटर्नशिप्स में यही रहता है कि तुम स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट विद आइदर जीएफजी और इंटरव्यू बिट। मतलब आई पर्सनली प्रेफर कि तुम इंटरव्यू बिट से एक बारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें क्या है बेसिकली सारे एक बारी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मतलब जो भी तुम्हें डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो कवर हो जाते हैं एक बारी। तो वंस यू आर डन विद इंटरव्यू बिट, तो उसके बाद तुम्हें कोई टॉपिक जो तुम्हारा वीक लगता है, कि लेटर से तुम्हें डीबी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या लेटर से तुम्हें ग्राफ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देन यू कैन गो टू जीएफजी और लीड कोड। मतलब जीएफजी का मैं बता देता हूँ, जीएफजी पे ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें, मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपनी वाइज या बेस्ड ऑन टॉपिक वाइज। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारी डीपी वीक रह गई है, तो तुम वहां से क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो। सेम विद लीड कोड, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा डीपी या ग्राफ वीक है, तो वहाँ पे लीड कोड में तुम्हें बेस्ड ऑन डिफिकल्टी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ईजी, मीडियम और हार्ड। तो तुम इजी से स्टार्ट कर सकते हो जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक है, फिर देन यू कैन मूव ऑन टू मीडियम एंड देन टू हार्ड। तो ये एक फ्लो तुम बना सकते हो। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो लोग मिस कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू अ गिवन प्रॉब्लम। मतलब एक क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे, उसी को 2-2 घंटे सॉल्व करते रहेंगे। मतलब इसमें ये होता है कि तुम, ठीक है, मतलब तुम एक दे सकते हो 1 से 2 घंटा, बट इससे ज्यादा मत दो। मतलब 1 से 2 घंटा दे दिया तो उसके बाद तुम यू मूव ऑन टू मतलब कि सॉल्यूशन पे या मतलब ट्यूटोरियल पे। क्योंकि इससे क्या होता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है एक ही क्वेश्चन में, और तुम फिर ऐसे तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है जब तुम इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हो। तो वो एक दिक्कत आती है। और एक और दिक्कत आती है इससे कि जब तुम टेस्ट में बैठ रहे होते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा कि सिर्फ 2 घंटे होंगे या 1.5 आवर होगा टू सॉल्व 2 और 3 प्रॉब्लम्स। तो तुम्हें वहाँ पे ऐसे स्पीड का इशू आ सकता है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो तुम ट्राई करो कि फास्ट सॉल्व करने की। मतलब जब तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो भी ऐसे नहीं है कि हाँ लेके बैठे हुए हो तुम 1.5-2 घंटे तक। ट्राई कि उसे फास्ट से फास्ट सॉल्व कर सको। और इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव वर्चुअल कॉन्टेस्ट ऑन कोड फोर्सेस। मतलब कोड बिगिनर्स, शेफ, मतलब हाँ कहीं कोड पे। शेफ कोड फोर्सेस पे वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हो। एंड मतलब और भी जो कॉन्टेस्ट होते रहते हैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट वो दे सकते हो। मतलब कोड शेफ लॉन्ग या टाइप्स नहीं, बट ऐसे लंच टाइम या वो थोड़ा सा ये सब। इसमें इस चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए तुम मैक्सिमम
मतलब अलोंग विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अलोंग विद प्रैक्टिसिंग तुम ये काफ़ी ध्यान रखना कि तुम यू गिव रेगुलर कॉन्टेस्ट, बिकॉज इवन दो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना जान पा रहे हो बट तुम कॉन्टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो तुम्हारा वो टेम्परमेंट नहीं बन पाएगा, तुम कॉन्टेस्ट में पैनिक कर सकते हो। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, मतलब उनको आती हैं चीज़ें बट जब उन्हें ऐसे 2 घंटे या 1 घंटे में करना होता है तो दे स्टार्ट टू ऐसे लूज कॉन्फिडेंस और फिर अच्छा नहीं जाता है उनका टेस्ट वगैरह। वही। शिवांश, और सीपी एंड ऑल तो ठीक है, अभी 2 महीने में काफी काफी कवर हो जाती है, इंटरव्यू बिट एंड थोड़े बहुत कॉन्टेस्ट दे लिए। उसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए? मतलब बेसिकली मेन तो इंटर्नशिप सीजन में दे डोंट आस्क मच ऑफ ऐसे सीएस कॉन्सेप्ट्स, मतलब मेजरली वो ओएस ही पूछते हैं, ओएस या हम्म। डीबीएमएस थोड़ा बहुत। वो भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ओएस भी, मतलब इफ़ यू से कि हमें नहीं आता तो इंटर्नशिप के दौरान मतलब वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें नहीं, तुमने अगर कोर्स नहीं किया हुआ तो नहीं पूछते हैं, बट इट इज़ बेटर कि तुम ऐसे एक बारी पढ़ के जाओ, ओवरव्यू ले जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो ओएस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटर्नशिप। और जो भी तुम लैंग्वेज में कोड करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर तुम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो तो तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तुम जावा में कर रहे हो तो तुम्हें उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी and Aniket, you can add anything. मैं या एक चीज ऐड आई करूंगा मिस्ड द कि क्वेश्चन। जब तुम वो कर रहे हो ना, ओएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज मोस्टली ओनली इम्पोर्टेंट अगर तुम सीएस के स्टूडेंट हो। अगर तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो दे मे लेट यू ऑफ द हुक, एंड मोस्ट कंपनीज उतना परस्यू नहीं करती हैं कि तुम्हारे सीएस के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। मोस्टली तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड शिवांश, अनिकेत को ये टेकअप कर लो कि प्रोजेक्ट्स किस टाइप के होने चाहिए तुम्हारे पास, बिकॉज उसके लिए भी काफी क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। तो तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स। जैसा इंटर्न, हाँ, जैसा बता बता बता। यूजुअली यू वुड थिंक कि हाँ रेज्यूमे, मतलब इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन कि रेज्यूमे में क्या क्या मैटर करता है। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी ऐसा वो ऐसा जो यूजुअली पता नहीं होता लोगों को कि प्रोजेक्ट्स यूजुअली काफ़ी मैटर करते हैं उसमें, इंटर्नशिप्स में और प्लेसमेंट्स में। सो दे द कंपनी सीज कि तुमने क्या प्रोजेक्ट्स किए, but this is after the coding round, so don't get confused about this. Usually तुम coding round clear कर लोगे, उसके बाद ये सब चीज़ें देखी जाती है। और even if you are very much मचाऊ in terms of projects, तुम्हें coding round तो clear करना ही पड़ेगा। बट हाँ, आफ्टर दैट तुम, अगर तुम्हारे रेज्यूमे में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, सो दैट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज। और इसमें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली वो थोड़ा प्रोफाइल के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। बट हाँ, अगर तुम जैसे सॉफ्टवेयर लाइन में अप्लाई कर रहे हो तो फिर एनीथिंग लाइक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स भी अगर तुमने करे हैं, या फिर तुमने कोई ऐसा ओएस के डेप्थ में भी प्रोजेक्ट किया है, तो वो सब भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और व्हेन यू ऐड अ प्रोजेक्ट टू योर रेज्यूमे एंड तुम उस कंपनी के इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, तो मेक श्योर तुम्हें उसकी अच्छी नॉलेज हो, उनको पढ़ के जाना। मतलब इट लुक्स वेरी बैड अगर तुम वहाँ पर जाते हो और फिर तुम अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, या फिर तुम अपने प्रोजेक्ट में अपना रोल नहीं बता पाते हो। और ऑल्सो मेक श्योर कि जैसे तुम कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा डाल दे रहे हो तो यू तुम ऐसा मत करना कि जैसे तुमने उसमें फ्रंट एंड हैंडल किया, लेट से तुमने एक वेबसाइट बनाई है एज अ प्रोजेक्ट और उसमें तुमने फ्रंट एंड हैंडल किया है सिर्फ। सो मेक श्योर कि तुम या तो उस चीज़ को काफ़ी क्लियर कर दो जब तुम उस चीज़ को लिस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट, कि हाँ उसमें तुम्हारा रोल क्या था वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डाल देना चाहिए, या फिर तुम्हें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये क्लियर नहीं किया है तो द पर्सन कैन आस्क एनीथिंग। तुम वहां पर बोलोगे कि नहीं सर मैंने तो इसमें यही हैंडल किया था, ये तो मुझे पता नहीं, तो दैट लुक्स वेरी बैड। तो ये सब चीजें मेक श्योर कर लेना कि पता हो। एग्जैक्टली, मतलब अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट्स अच्छे से नहीं किया है, या तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है, या ग्रुप प्रोजेक्ट था और तुमने काम ही नहीं किया, तो वो बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया और तुम्हें नहीं आता हो तो तुम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाओ। दिस इज ट्रू फॉर प्लेसमेंट्स, दिस ऑल्सो ट्रू फॉर इंटर्नशिप्स। ठीक है।
और क्या होता है? शिवांश थोड़ा रेज्यूमे के बारे में बता दे, व्हाट आर योर व्यूज कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? मतलब रिज्यूमे ट्राई करना चाहिए कि सिंगल पेज हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सिंगल पेज रिज्यूमे में मतलब जैसे हमारा तो स्ट्रक्चर काफ़ी डिफाइंड रहता है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रिज्यूमे में होनी चाहिए वो तुम्हारी एक तो हो जाती है सीजी, मतलब वो मैटर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एकेडमिक मतलब एकेडमिक्स, देन फॉलोड बाय योर इंटर्नशिप्स और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो जो अगर तुमने किसी ने सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में जो भी इंटर्न्स किए हैं वो, और उनका ढंग से डिस्क्रिप्शन, मतलब व्हाट यू हैव डन एग्जैक्टली इन योर इंटर्नशिप, वो ढंग से डिफाइन करना पूरा। फिर उसके बाद आ जाते हैं जैसे हमने कहा प्रोजेक्ट्स। तो जो भी तुमने प्रोजेक्ट किए हैं पिछले 2 या 3 सालों में, उनका अच्छे से डिस्क्रिप्शन ये आ जाता है। फिर देन योर अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड अदर अचीवमेंट्स जो तुम वहाँ पे डाल सकते हो। मतलब तुम कोई हैकेथॉन में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, या किसी और कोडिंग कॉन्टेस्ट में तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हारी कोई बहुत अच्छी रेटिंग है किसी प्लेटफॉर्म पे, तुम वो सब लिस्ट कर सकते हो वहाँ पे। एंड उसके बाद तुम्हारी स्किल्स, तुम किस किस चीज़ में प्रोफिशिएंट हो। और उसमें ये आ जाता है कि तुम्हें किस चीज़ की मतलब बिल्कुल ऐसी इंट्रोडक्शन हो, तो वो मत डालो वहाँ पे। मतलब क्योंकि अगर तुम्हें किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन है और तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो और तुम अगर अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो तो सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है उसपे। तो या तो वो चीज़ डालो और उसके बारे में पढ़ लो, या उसे डालो ही मत। तो ऐसे मतलब जब किस चीज जब में? बस, मतलब अगर तुमने किसी चीज़ का सिर्फ नाम सुना है और तुमने एक बार उसे खोल के देखा, अच्छा मैंने फिग्मा का भी खोला था, सो मुझे फिग्मा आता है तो मैं डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। वो पूछ सकता है, मतलब वो पूछेगा कि व्हाट इज फिग्मा, वो क्यों यूज होता है, मतलब या कोई भी टूल, कोई भी चीज़। और मतलब फिर इस एक, चीज में एक सेकंड में ऐसा है कि ऐड ऑन करने से इसमें चीज में हाउ इट वर्क्स है कि तुम्हारे बैड लक पे काफी चीजें डिपेंड कर जाती है। जैसे सपोज तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ के जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सीपीपी डाल दिया, बट सामने जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया है वो पाइथन में मास्टर है। वो पाइथन देखते ही उसको चमक गया, ओ भाई इसने पाइथन करी है, फिर वो तुम्हें पेल देगा। वो बैड लक ना हो, वो फिर उससे तुम्हें जितना पॉजिटिव नहीं मिलेगा ना, उससे ज्यादा नेगेटिव मिल जाएगा कि हाँ भाई पिल गए फालतू। हाँ तो इसीलिए होता है कि जो भी तुम डाल रहे हो उसकी डिसेंट इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि वो भी हाँ कहे कि अच्छा तुमने 1 साल करी है तो तुम्हें ये, हाँ ठीक है तुम्हें इतनी नॉलेज है, तो वो मान जाएगा कि हाँ। मतलब वो ये भी नहीं शायद एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें सभी कुछ आता हो, बट हाँ तुमने डाली है तो उतना तो आता हो कि उसे लगे कि हाँ 1 साल करी है इसने, या 1.5 साल करी है, जितना भी करी है। तो ये सोच के डाल बस देना। ये मत सोचना कि हाँ भाई कि क्या ये पाइथन ही क्यों उठाएगा मेरे पूरे रेज्यूमे से, जबकि मैंने इतना छुपा के डाला हुआ है। बट हाँ नहीं, वो उठा लेगा क्योंकि उसे वही आता एग्जैक्टली। होगा। तो ये हो सकता है, तो हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि तुम जो भी चीज़ डालो एक बारी या तो उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाओ, या मत ही डालो। मतलब या तुम्हें अच्छे से आती हो। और उसके बाद हाँ। नेक्स्ट सेक्शन तो तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, मतलब अगर तुम किसी चीज़ के मतलब तुम किसी स्पोर्ट्स में हो, तुम किसी उसमें हो थोड़ा बहुत, तुम्हारी कोई पीओआर है किसी ग्रुप में, वो सब डाल सकते हो। हम्म। मतलब प्रायोरिटी यही होती है कि तुम टॉप पे अपने इंटर्नशिप्स एंड ऑल, ये मेजर होता है। ये मत सोचना कि मैं 5 पीआर डालूंगा इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट हटा दो, क्योंकि उन पे उतना वेटेज नहीं होता। प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स पे तुम्हारी कोई बहुत एक्सीलेंट चीज़ हो उस पर ज़्यादा वेटेज रहेगा, रादर देन कि तुम ऐसे 10 चीज़ लिस्ट कर दो, गिटहब आता है, फिग्मा आता है, ये सारे तुम लिस्ट में, उसका कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को मारना होगा तो फालतू में मार भी लेगा। तो जितना स्पेसिफिक चीज़ तुम डाल सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ये लिख करा है, उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, और जो इंटरव्यू ले रहा है उसे समझ भी बेटर आ जाएगा कि हाँ इसे ये आता है। और एक ये थोड़ा ऐसा एडवांस लेवल टिप है, तो तुम थोड़ा कंपनी सेंट्रिक भी रख सकते हो अपने रेज्यूमे, प्रोफाइल सेंट्रिक, कि तुमने बहुत वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट लेट्स से कि तुम एक सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर तुम उस रेज्यूमे में थोड़ा अपने ओएस सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, डेटा नेटवर्किंग सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स इनको रखोगे तो दे विल लुक बेटर। या डोंट शाय अवे फ्रॉम मॉडिफाइंग योर रेज्यूमे। हाँ मतलब वो तुम प्रोफाइल बेस्ड रेज्यूमे बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रोजेक्ट्स हैं मतलब डिफरेंट डोमेन्स के, तो तुम बना सकते शिवांश एक बार टाइम टेबल बता देगा आईआईटी रुड़की के इंटर्नशिप का कैसा होता है? हो। ओके सो व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले तुम्हारा होता है रिज्यूमे वेरिफिकेशन। एंड रिज्यूमे वेरिफिकेशन जब हमारे टाइम पे मतलब 2 साल पहले, मतलब वो होता था लास्ट वीक ऑफ जुलाई, अराउंड 30 जुलाई के आसपास।
ओके। एंड उसके बाद टेस्ट हो जाते थे तुम्हारे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू। इंटर्नशिप्स में हमारे यहाँ क्या होता है कि तुम्हारे टेस्ट होते हैं फॉलोड बाय इंटरव्यूज, फिर कुछ और टेस्ट, फिर कुछ और इंटरव्यूज। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के एंड से, मतलब 7-8 अगस्त के अराउंड से। मतलब ये मैं तुम्हें 2 साल पहले का बता रहा हूँ जो हमारा टाइम था। एंड वो चलता है ऑलमोस्ट, ये प्रोसेस ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर चलता है, मतलब सितंबर मिड तक। तो तुम ये मान सकते हो कि तुम्हारी तैयारी हो जानी चाहिए 30 जुलाई या मतलब वर्स्ट केस 5 अगस्त के अराउंड तक। एंड मोर और लेस सारे इंस्टीट्यूशंस ही यही टाइमलाइन फॉलो करते हैं, यूजुअली थोड़ा सा शिफ्टेड, मैक्सिमम मंथ प्लस माइनस होता है। तो यू कैन टेक मतलब इट इन तुम अ पता जनरल। लगा लेना पर अपने कॉलेज का, अगर तुम आईटी हाँ रुड़की से नहीं हो भाई। तो। हाँ। 1 मिनट, ये क्वेश्चंस आंसर कर देते हैं फटाफट। आयुष ने लिखा है कि इंटर्न इन बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड काउंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरव्यू। देख, ज्यादा वेटेज नहीं होगा, बट अगर तेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो लिख दे एंड उन्हें बता देना मैंने ये काम किया था, इनसे इंटरेक्ट किया था, ठीक है। एंड अ, स्टिल मतलब अगर तुम्हारा वो है किसी भी फील्ड में तुमने थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड ही चाहे हो, तुम्हारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो इट गिव्स यू प्लस पॉइंट्स। अगर मतलब तेरे पास, तेरी रिज्यूमे में जगह नहीं हो रही और तू सोच रहा है कि टेक प्रोजेक्ट रखना है, ये रखना है, तो टेक प्रोजेक्ट रख। हाँ बट दिस इज ऑलवेज अ प्लस, मतलब ना होने से तो बहुत बेटर है ये। ठीक है। फिर एसटीसी के प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन का क्या सीन होता है? देख, एसटीसी में काफी ग्रुप्स आते हैं, है ना। तो अगर सपोज मैं एमडीजी में हूँ, तो मैं एमडीजी का एग्जांपल देता हूँ। तो हाँ, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट हुआ है एंड यू हैव कोलैबोरेटेड काफी उस प्रोजेक्ट में, तो हम एसटीसी को लिस्ट भेजते हैं कि ये प्रोजेक्ट वेरीफाई करा दो। तो दैट इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारा काफी कंट्रीब्यूशन है तो तुम्हारा सेक्रेटरी लिस्ट भेजेगा एसटीसी को कि ये प्रोजेक्ट इस इंसान ने किए हैं एंड इन्हें प्लीज सर्टिफिकेट भेज दो। ये सर्टिफिकेट तुम्हारी ईमेल पे आ जाएगी एंड जब तुम्हारा रेज्यूमे वेरिफिकेशन होगा तो तुम उसे बस बता देना कि ये मेरे सर्टिफिकेट था, ये ग्रुप से आया होगा आपके पास, तो वो चेक करके आपका हाँ भर देंगे। जब भी तुम अपने रेज्यूमे में आईटी रूट की कोई चीज लिख रहे हो, चाहे वो प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ग्रुप के अंडर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोर्स के अंडर प्रोजेक्ट हो, उसमें तुम्हें ऑप्शन मिलता है, आईएमजी के जो पोर्टल होता है उसमें ऑप्शन मिलता है कि लिखने का कि किसके अंडर किया था प्रोजेक्ट। तो हमेशा आईटी रूट की लिखना, वरना मतलब जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल है वो उसे रिजेक्ट कर देगा कि ये ठीक नहीं है। तो हमेशा वो याद रखना कि वो आईटी रूट की लिखा जाए। ये और गाइडलाइंस तो मतलब ये वैसे सब चीजें तुम्हें तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सेल्स। हाँ, वो भी है। प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन वर्सेस कोड फोर्सेस रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब ये बताओ। अगर तुम कोड फोर्सेस रेटिंग ऐसा सेल्फ एवेल्युएशन के लिए अंदाजा लगा रहे हो कि किस रेटिंग पे आई शुड थिंक कि मैं प्रिपेयर इनफ हो चुका हूँ, तो इंटर्नशिप्स के लिए 1700 प्लस में तुम ऐसा कह सकते हो कि हाँ गुड प्रिपरेशन चल रही है। और प्लेसमेंट के लिए 1900 प्लस में तुम मान सकते हो कि हाँ कि अब गुड प्रिपरेशन हो गई है। मतलब इतने में कि 99% तुम्हारे सारे एटलीस्ट टेस्ट तो निकल ही जाने चाहिए इतने में। बाकी हाँ, अगर तुम उसको एज अ अचीवमेंट लिखने का सोच रहे हो कि हाँ तुम्हारी क्या एक अचीवमेंट है, कोड फोर्सेस रेटिंग यू कैन राइट इन योर रेज्यूमे एज एन अचीवमेंट, मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है वो भी। तो उसमें तो वही बात है, उसमें जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ओके। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के लिए कितनी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक रहेगा? मतलब इसमें इस चीज़ में कोई वो ठीक रहने वाली बात वो है नहीं, इसमें कोई मिनिमम वो होता नहीं है कि हाँ फर्स्ट ईयर में इतनी ला के फिर छोड़ देते हैं फिर सेकंड ईयर में कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसा अगर सोचोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कंटिन्यूस एफर्ट लगेगा। और फिर ऐसा अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारी रेटिंग कम भी है और तुम कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हो तो तुम्हें आगे फ्रूट्स मिल जाएंगे उसके। बट ऐसा मत सोचो कि हाँ इतनी रेटिंग इज अनफ या इतनी रेटिंग इज लो। हाँ, हम्म। मतलब अगर तुम्हारी रेटिंग लो भी है और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और तुम्हें लगता है शायद तुम कोड फोर्सेस पे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि शायद उनका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। मतलब उनके क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, एड हॉक टाइप भी हो जाते हैं कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस। तो मतलब बस तुम्हें खुद कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए कि तुम इनफैक्ट क्वेश्चंस इनफैक्ट कर फर्स्ट पा रहे ईयर हो। में रेटिंग्स को इतना इतना फक भी नहीं देना चाहिए फर्स्ट ईयर में।
थोड़ा ऐसा कॉन्टेस्ट हाँ तुम ऐसे दे जितने कॉन्टेस्ट दे सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना होता है। ऐसे इतना लोड नहीं लेना होता कि क्या रेटिंग होगी मेरी। ठीक है, हाँ मतलब सही है सही है। कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। तो सिंपलेस्ट वे है कि तुम कोई प्रोफेसर को अप्रोच करो एंड उनके अंडर कर लो। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम जिसके भी अंडर कर रहे हो, तुम किसी एनजीओ के अंडर कर रहे हो, जिसके भी अंडर कर रहे हो, उन्हें तुम्हें आइदर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर कोई मतलब सर्टिफाई तो उन्हें करना पड़ेगा कि इसने प्रोजेक्ट किया है, वरना तुम उसे अपने रेज्यूमे में नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो अगर तुम खुद से कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फिर और अगर तुम उसे वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसे रेज्यूमे में नहीं डाल पाओगे। तो उसका ध्यान रखना। तो आइदर एनजीओ सेटअप कर लो या कोई कंपनी, या तुम इंटर्न विंटर्न कर रहे हो तो दैट इज ऑलवेज गुड, बट उनसे हमेशा अपने वेरिफिकेशन ले लेना कि ये प्रोजेक्ट मैंने बाकी किया ऐसा है। आईआईटी रुड़की में कई कैंपसेस हैं जो प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक एरीज आई थिंक प्रोवाइड कर देता है प्रोजेक्ट्स अगर तुम्हें करना हो हाँ मतलब हम्म। तो ऐसे अप्रोच करो। ठीक है, शिवांश एनी आइडिया कि यूट्यूब चैनल कौन सा ठीक रहेगा डीएसए के लिए? मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तो हैं बट वही होता है, मतलब यूट्यूब चैनल्स पे क्या होता है कि एक चीज़ अगर तुम्हें वो फंक्शन ही सिखा रहे हैं ना तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है मतलब। तो तुम कर सकते हो उससे भी मतलब यूट्यूब से, बट हम यही रिकमेंड करेंगे कि तुम प्रैक्टिस करो और वो करो, फिर टॉपिक जीएफजी या वगैरह या जो भी रिसोर्सेज दिए हैं सीपी एल्गोरिथम्स वगैरह उसी से पढ़ो, क्योंकि उससे वही तुम ऐसे मतलब हमारे हिसाब से बहुत फास्ट कवर कर सकते हो कोई टॉपिक जो वहाँ पे बहुत ही उसमें समझाया गया हो। मयंक यार, ऐसे डायरेक्टली पर्सनल प्रोजेक्ट्स वेरीफाई तो नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। राहुल ने पूछा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो हाँ कर रहे हैं। जीसॉक वीसॉक तो डायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है, एंड बाकी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में यू कैन राइट कि हमने यहाँ पे हाँ। कंट्रीब्यूट यू किया था, कैन तुम्हें उनके मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ तुम कर रहे हो उनकी तरफ से एक मेल चाहिए होगा कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग देयर फॉर लास्ट 12 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स जो भी है। यूडेमी, कोड ब्लॉक्स, कोडिंग निंजास, विच इज बेटर? कुछ आइडिया शिवांश? नहीं मतलब हम आई नहीं। डोंट थिंक हमारे यहाँ ज़्यादा लोग ये हाँ फॉलो करते मतलब हैं। बहुत ही कम लोग कवर करते हैं, यूज करते हैं ये सब प्लेटफॉर्म्स। ये सब काफी स्लो पढ़ाते हैं चीज़ों को। यू कैन कवर these topics much faster on GFG या फिर ऐसे। हाँ सीपी एल्गोरिथम्स, जीएफजी, हैकर अर्थ, इनको मतलब तुम इन सब पे तुम्हें इनको तुम एज हम्म, रेफरेंस यूज कर लो बस, कि ये तुम्हें बता सकते हैं, ये तुम्हें ऐसा दिखा देंगे कि हाँ नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये, बट इनको एग्जॉस्टिव और इनको ही ओनली सोर्स मत कंसिडर करो। और एक हम्म। और चीज़ हो जाती है वीडियो ट्यूटोरियल्स में कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है बट वो नहीं आ रहा होता क्योंकि हम सिर्फ वीडियोस देख के छोड़ देते हैं। तो इसीलिए भी रिकमेंडेड है कि जिस टॉपिक में तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए कि तुम उसे पढ़ो और फिर खुद इम्प्लीमेंट करके देखो। तो ये भी एक चीज़ है। अगर सब कुछ सामने वाला बोल देगा और तुम अपने आप से प्रोसेस नहीं करोगे तो फिर तुम उसको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। बट जब तुम कोई चीज़ पढ़ रहे होगे और तुम्हें उसको समझने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना होगा ना, तब तुम आई गेस बेटर समझ। ओके, कुछ लोग एक ने पूछा है कैगल के प्रोजेक्ट काउंट होते हैं क्या? नॉट श्योर, डाल के देख लेना। पीआईओ मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। तो इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स रख लेना, पर अपने रेज्यूमे में वो तुम फिर बाद में एडिट कर पाओगे कि रखना है कि नहीं रखना है। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स? एमडीजी ओपन सोर्स में आ जाओ, अपना वो है, वर्क स्पेस है। बाकी ऐसे काफी गिटहब रिपोजिटरीज हैं जो पूरा ट्रैक रखते हैं कि कौन कौन से अच्छे ओपन सोर्स के वो हैं, रिपोजिटरीज हैं। जैसे ऑसम ओपन सोर्स के नाम से होगी आई थिंक गिटहब रेपो, वो देख लेना। उसमें तुम्हें जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उसमें करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे छोटे छोटे इश्यूज से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। फिर मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू परस्यू समथिंग जो तुम्हें अच्छी लग रही हो या तुम काफी पैशनेट हो उसके बारे में। अगर तुम बिना सिर्फ मतलब ऐसे कहीं लिखने के लिए कर रहे हो कि हाँ मुझे बस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो उसका ज्यादा पॉइंट नहीं है। ओपन सोर्स इज ऑलवेज बेटर अगर तुम काफी पैशनेट हो उसके लिए। कौन सी रेपो यार, मैं डाल देता हूँ लिंक। शिवांश, एक बार तो तब तक प्लेसमेंट्स का थोड़ा बताना शुरू कर दे, क्या क्या प्रेप करी थी हम लोगों ने भी करी थी और क्या क्या एक्स्ट्रा होता है।
ओके, तो प्लेसमेंट्स का एक बारी थोड़ा स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। प्लेसमेंट्स का ऐसे ही होता है कि फर्स्ट सेम एज इंटर्नशिप के फर्स्ट तुम्हारे कोडिंग टेस्ट होंगे एंड देन तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे, मतलब यही स्ट्रक्चर रहेगा। और मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर टू इंटर्नशिप, कि तुम्हें सबसे पहले सीपी तो करनी पड़ेगी, मतलब डीएसए वगैरह ये सब। एप्टीट्यूड भी करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि जो तुम्हारे इंटरव्यूज होते हैं उनमें थोड़े और सीपी एग्जॉस्टिव टॉपिक्स पूछे जाते, वो सीएस एग्जॉस्टिव टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, ये सब टॉपिक्स वहाँ कवर किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम जो हम इंटर्न में करते हैं। पर प्लेसमेंट में एक और चीज़ डिफरेंट होती है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो टेस्ट में आते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। मतलब तुम्हें थोड़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी पड़ेगी हर टॉपिक की। जैसे हमने टर्न में कहा था कि तुम्हें बस ये भी तुम्हें एक बारी वाइड नॉलेज, मतलब हॉरिजॉन्टल नॉलेज होनी चाहिए सब टॉपिक्स की, बट यहाँ पे तुम्हें थोड़ी ऐसे इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब डीबी, ट्रीज, ग्राफ्स, इन सब के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छी कंपनीज में। तो इसलिए प्लेसमेंट में थोड़ा क्या है कि तुम्हें एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब तो उसमें मेन ऐसा नॉट एग्जैक्टली कि तुम्हें बहुत डीप जाना होगा किसी टॉपिक के, बट हाँ उसको उसकी ट्रिक्स का आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट वेज ऑफ हाइडिंग अ क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब लाइक जब जेई में भी क्या होता था, कोई सिंपल टॉपिक भी होगा तो भी वो क्या करते हैं, मतलब उसको इतना छुपा देते हैं उस टॉपिक को कि तुम्हें फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ आएगा। लाइक एसेट की जब वो इंट्यूशंस डेवलप होने लग जाएगी कि अच्छा ये तो इसमें तो बाइनरी सर्च लगेगा या इसमें तो डीपी लगेगा, तो वो प्रैक्टिस हाँ, ज़्यादा चाहिए होगा तुम्हें प्लेसमेंट को टैकल करते हुए। बाकी एक और चीज़ थी कि दिस इज़ फॉर बोथ इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स की एक और जैसा कई एप्टीट्यूड में कई कई कंपनीज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछ लेती है। तो उसमें तुम एक बुक है 50 प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स 50 करके, तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन उसमें प्रोबेबिलिटी। तो वो काफ़ी अच्छा रिसोर्स है जिसको तुम पढ़ के ऐसा और आइडिया लगा सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स कवर होती हैं, मतलब कि तुम्हें कितना वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उसमें बहुत ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मोर और लेस जो जेई का सिलेबस होता है प्रोबेबिलिटी का वही पूछते हैं। हाँ, और इसमें भी हमने क्या किया था, मतलब मेजरली जब हमने प्रिपरेशन करी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब हमने तो शायद लीड कोड से स्टार्ट किया था, बट यू कैन स्टार्ट विद इंटरव्यू बिट आई गेस। इंटरव्यू बिट में वही अगेन एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने हर एक टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस डिफाइन कर दिए हैं जिससे तुम्हारा एक बार टॉपिक कवरेज कंप्लीट हो जाता है। तो तुम एक बारी या तो इंटरव्यू बिट के साथ स्टार्ट कर सकते हो या तुम जीएफजी या लीड कोड जो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इंटरव्यू बिट के साथ एक बारी स्टार्ट कर लो। तो वो तुम कर सकते हो, मतलब एक महीने में इंटरव्यू बिट पूरा एंड टू एंड कंप्लीट। तो एक बारी इंटरव्यू बिट कंप्लीट होगा, फिर तुम जो तुम्हें टॉपिक अगेन वीक लगे तुम उसके लीड कोड पे क्वेश्चन कर सकते हो, या जीएफजी पे कर सकते हो, या सीएसीएस वगैरह पे भी कर सकते हो। अब जीएफजी पे क्या मतलब एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे कि तुम मस्ट टू कोडिंग क्वेश्चंस ये सब एटलीस्ट कर लो सारे, जो कंपनी वाइज क्वेश्चन होते हैं ना जीएफजी पे, वो कर लो। और लीड कोड पे भी थोड़ा, अभी प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि डीबी और ग्राफ थ्योरी पे ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम उनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लो। तो डीपी के लिए और ग्राफ्स के लिए तुम लीड कोड रेफर कर सकते हो, उस पर अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें। सी और एस सी एक एस। सीएसीएस पे भी जा सकते हो, यस यस। सीएसीएस पे भी अच्छे ग्राफ्स और ट्रीज के क्वेश्चन है। तो तुम जाके एक्सप्लोर मतलब तुम स्टार्ट करोगे तुम्हें कई कई क्वेश्चंस तो कॉमन मिलेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बट तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अगेन वही चीज कि यहाँ पे भी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, मतलब कि तुम 2 घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ या 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए ट्राई करो कि वर्चुअल दो, मतलब वर्चुअल या कॉन्टेस्ट जैसे भी तुम्हें सही लगे, हर रोज या हर एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे थोड़ा मतलब कॉन्टेस्ट देते रहो ताकि तुम्हारी स्पीड बनी रहे। सही है। और शिवांश, इसका पाइथन का आइडिया क्या तेरे को? ये एक बंदा लिख रहा है कि 50% केसेस में पाइथन अलाउड नहीं होती। या नहीं मतलब पाइथन मतलब पाइथन अलाउड रिकमेंडेड अलाउड नहीं ही है, है। मतलब
लेट्स से नहीं तुम बट पाइथन में अगर कर भी रहे हो तो रिकमेंडेड नहीं है, ट्राई टू अवॉइड। प्लेसमेंट क्योंकि टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब प्लेसमेंट्स में सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में अलाउड होती है पाइथन एज फार एज आई रिमेंबर, मतलब बट अगर तुम चाहो तो सी प्लस प्लस पे शिफ्ट कर सकते हो, बट एज फार एज आई डेफिनेटली रिमेंबर सारी। 50% तो नहीं है वो रेशियो, मोर लाइक हाँ 5% हो सकता है। और सिस्को में फायदा मतलब सिस्को में बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ, और बाकी एक बारी हाँ, तुम ऐसा ये सब बेसिक चीज़ें कवर कर लो कि हाँ तुमने हर एक, तुमने ओवरऑल सीपी का आइडिया लगा लिया, कोडिंग राउंड्स का प्रिपरेशन कर लिया, तो मेक श्योर कि तुम कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें भी देख लो। जैसे सम कंपनीज पर्टिकुलरली फॉलो अ पैटर्न कि वो डीपी या ग्राफ के क्वेश्चन ही डाल रही है, तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ों का बिफोर गिविंग अ कोडिंग राउंड आइडिया लगाना प्लस पॉइंट दे देता है। हम्म। कुछ एक आध बंदे ने पूछे हैं कि सीजी कट ऑफ्स कितने होते हैं, और मैं रेकमेंड करूंगा जो अपने डायरेक्ट सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करके पूछना, क्योंकि वो हर साल थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है। बाकी मतलब एच एफ टी 8.5 मांगती है, एंड मोस्ट कंपनीज 7+, और ऐसे अराउंड 50% कंपनीज 7+ होती हैं, बाकी अलाउ कर देती हैं। तो बट अगर 6 से कम है तो फिर काफी काफी कम स्कोप हो जाता है तुम्हारा। हाँ, बाकी अगर इन केस तुम्हें किसी से भी अपनी कॉलेज लाइफ में ये आइडिया लगा है कि हाँ सी जी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हाँ। और रिकमेंडेड तो ये भी है कि लेट से तुम्हें किसी ने बताया कि 8.5 इज़ द बार, इसके ऊपर रखने पे तुम बिल्कुल सेफ हो, तो स्टिल इट इज़ ऑलवेज गुड टू बेटर हैव गुड टू हैव सीजी। मोर सीजी। क्योंकि हाँ। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही लाइट इम्पैक्ट करती है कि हाँ बस थोड़ा सा एक माइनर चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। अगर ज़्यादा रख सकते हो तो रख लो, काफ़ी काफ़ी अच्छी दिखती है और काफ़ी मैटर करती है कंपनीज को, काफ़ी कंपनीज को सीजी। मतलब अगर तुम्हारी 9+ है तो तुम मोर और लेस अच्छी सेफ पोजीशन में हो, मतलब मतलब लाइक कई 9। कंपनीज में ऐसा भी होता है कि तुम्हारी सीजी ज़्यादा है बट तुमने कोडिंग राउंड में अगर कम क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कंपेयर टू हाँ अदर्स, तुम्हें फिर भी तुम्हें इंटरव्यू फिर के भी लिए बुला लिया जाएगा। बुला लेंगे। एग्जाम्पल्स नहीं तो दिए प्लस जाएंगे पॉइंट है। हाँ हाँ। मतलब बट ये होता है, ये हाँ, बहुत कंपनीज में होता होता है है। होता है। अनिकेत, एक क्वेश्चन है, पैक प्रोजेक्ट्स भी देती है क्या? नहीं। आई एम फ्रॉम पैसा पैग, देती है मैं भाई। पैग फोर्थ ईयर आई टू, बट पैग में ऐसा एज सच कोई प्रोजेक्ट्स नहीं इशू होते हैं, तो दूसरे ग्रुप्स को ट्राई कर लो, ऐसे एस टी एस लैब्स, आई एम जी। तो नहीं देती है। और नहीं, आई एम जी में इन केस यू हैव इंटरेस्ट वी कैन होस्ट इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, अगर तुम्हारा मतलब ओपन प्रोजेक्ट सोर्स काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इम्प्रेसिव होगा। ओपन सोर्स ही प्रोजेक्ट्स हैं सारे, तो तुम अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम अच्छा या कंट्रीब्यूशन होगा तो वी कैन ऐसे तो तुम्हें वो मिल सकता है कि हाँ तुमने काम किया करके। सर्टिफिकेट, वी कैन इशू सर्टिफिकेट हाँ इफ मतलब योर वही। कंट्रीब्यूशन इज इम्प्रेसिव इनफ। तो बाकी एंड एरीज हैं और एमडीजी, ऑफ कोर्स सौरभ कैन टेल बट। हाँ देखो, अगर हमारे प्रोजेक्ट हमारे ओपन सोर्स वर्कस्पेस है, तो अगर तुम्हारी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है तो विल गिव सर्टिफिकेट्स, बट ऐसे एक आध इश्यूज के लिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करते हैं। एच एफ टी फर्म्स का क्या प्रोसेस होता है, शिवांश? और तो ही बता दें। अरे सुन ठीक है। ऐसा मतलब होता है कि नॉर्मली होता है, कोडिंग टेस्ट होता है, एंड कोडिंग टेस्ट में थोड़ा सी प्लस प्लस पूछा जाएगा, थोड़ा सा ओएस पूछा जाएगा, ओएस नेटवर्किंग के सवाल होंगे, बाकी कोडिंग क्वेश्चंस होंगे 2 या 3। ठीक है, एंड मतलब ऐसे सिंपल भी नहीं होंगे बट बहुत सुपर हार्ड भी नहीं थे, मतलब हमारे टाइम तो ओके ओके थे। फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में थोड़ी फर्स्ट राउंड में तो सीपी पूछी जाती है, फिर सेकंड राउंड में सी प्लस प्लस एंड नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काफी फोकस रहता है, डीबीएमएस तो नहीं पूछते। तो बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, मतलब एंड देन हाँ बता। हाँ मतलब एचएफटीज में यही रहते हैं, इन्हें थोड़ा ऐसे अगर तुम क्वांट रोल के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हें ग्रिल किया जाएगा क्वांट के लिए पूरा, और अगर तुम ऐसे और डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओएस नेटवर्किंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये सब आता हो, मतलब मतलब मेक तो श्योर अगर तुम्हें तुम ये किसी भी कंपनी में, काफी इन डेप्थ पूछते हैं। इवन इफ एच एफ टीज या मतलब कोई और भी ऐसा फिनटेक कंपनी में अगर तुम कॉन्ट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर तुम्हें काफ़ी अच्छी कॉन्ट कॉन्ट की नॉलेज है, क्योंकि वो काफ़ी ग्रिल करते हैं।
प्रोबेबिलिटी, Analysis स्टैटिस्टिक्स, ये सब का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। बाकी प्रोसेस तो सेम ही होता है, इंटरव्यूज में बस ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा पूछते हैं। और एक और चीज़ मिस हो एग्जैक्टली। गई, मतलब ऐसा भी होता है कि कई कई कंपनीज के टेस्ट में भी ऐसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग, डीबीएमएस और सी प्लस प्लस रिलेटेड। मतलब ये इंटर्नशिप के लिए भी ट्रू है और प्लेसमेंट्स के लिए भी ट्रू है। तो तुम कर मतलब इंटर्नशिप पे आई डोंट थिंक ज़्यादा कंपनीज पूछती हैं, मतलब कुछ कुछ पूछती हैं, बट प्लेसमेंट्स में भी तो पूछती हैं कुछ कुछ कंपनीज। तो तुम ऐसे टेस्ट शुरू होने से पहले जो भी तुम्हें मतलब इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बट तुम एक हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो कुछ कुछ टॉपिक्स का, मतलब मतलब मोर जो तुमने और पढ़े लेस हुए हो। जीएफजी कवर कर लेता है ऑलमोस्ट सब कुछ, उस पे पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ होगा। और मेक श्योर कि ये सब चीज़ें तुम आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग राउंड्स, मतलब हाँ कोडिंग पर्टिकुलरली उसको कंप्लीट करके कर रहे हो, क्योंकि वो मेजर रहेगा। क्योंकि जैसे एमसीक्यूज आएंगे मोस्टली इसके इन क्वेश्चंस के, तो वो होंगे लेट से 5-5 नंबर के एक होगा, और ऐसे 10 एमसीक्यू होंगे। बट फिर उसके बाद 3 50 100 पॉइंट्स के कोडिंग क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी मेजॉरिटी जो वो होता है वेटेज, वो वही कवर करते हैं। एग्जैक्टली बट कुछ कुछ एक आध कंपनीज में ऐसा भी हो जाता है कि इक्वल वेटेज हो जाती है। तो मतलब वही है कि थोड़ा अगर कर सको तो कर लेना, बट ऐसा अगर जैसे कर अनिकेत सको ने बताया कि डेफिनेटली। वही रेशो मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा सी कॉम्पिटेटिव मतलब कॉम्पिटेटिव की साइड रहती है। तो तुम अगर फेमिलियर नहीं हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कॉम्पिटेटिव की ही तैयारी करो, इन सबको भूल जाओ, मतलब छोड़ सकते हो तुम टेस्ट के क्योंकि टाइम एटलीस्ट। क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि हाँ हम कॉम्पिटिटिव, हमें इंटरव्यूज के लिए तो ये सब पढ़ना ही है, तो फिर कोडिंग राउंड से पहले ही ये सब पढ़ लेते हैं, तो ऐसा मत सोचना। क्योंकि तुम्हें आफ्टर कोडिंग राउंड्स भी टाइम मिलेगा ये सब टॉपिक्स पढ़ने का इंटरव्यूज के लिए। हाँ मतलब एक तो प्रखर ने अपने एमडीजी ओपन सोर्स का वो लिंक डाल दिया है, देख लेना जो पूछ रहा था शिवांश यार। वो उसका वो क्या था, सिस्टम डिजाइन की वीडियोस कौन बनाता था? याद नहीं है, वो एक सेकंड में सर्च करके बता देता हूँ। उसके अच्छे रिसोर्स रहते हैं ओएस के लिए। आई वुड रेकमेंड कि अगर बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो तो किसकी गौरव बुक थी वो? गौरव सेन है एक मतलब चैनल जिस पे हमने देखा था। और एक और मैं लिंक डाल देता हूँ चैट में। ओएस की डायनो बुक रहती है ना? हाँ मतलब डायनो बुक, वही सिल्वर स्कार्स क्या बोलते हैं उसे। हाँ हाँ ठीक है। वो ढूंढ के मिल जाएगी, डायनो बुक ओएस पीडीएफ ढूंढ लेना, मिल जाएगी। एंड येलो पेजेस भी मतलब येलो पेजेस तो अभी वो तो रिवीजन के लिए है, ठीक है। मतलब सिस्टम हाँ डिजाइन के लिए एक और रिसोर्स भी डाल दिया है। मतलब अगर तुमने ओएस पढ़ रखा है, मतलब कोर्स था तुम्हारा या तुमने माइनर में कवर कर रखा है, तो तुम मेरे हिसाब से येलो पेजेस रेफर कर सकते हो, सफिशिएंट होगा। बट अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो या तो कोई और मतलब येलो पेजेस तब मत पढ़ना डायरेक्टली, क्योंकि काफी चीजें स्किप होंगी उसमें। बाकी फॉर ओएस नेटवर्किंग इन सब के लिए तुम यूट्यूब चैनल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें मतलब काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है उनमें यूजुअली। ये सब हाँ थोड़ा खुद पढ़ना डिफिकल्ट होता है और वर्थ इट नहीं होता इन पे खुद ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिमाग लगाना है। टाइम वेस्ट होता है बेसिकली, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कोई इनमें तुम्हें हाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके गाइस, और कुछ क्वेश्चंस हो तो डाल देना, लास्ट में विल टेक इट अप। अभी एमडीजी के साइड से वी हैव अ प्रोडक्ट which will help you track your friends and your competitive programming की progress। तो वो उसके बारे में अभी मनस्वी विल टेल यू, है ना? तो और क्वेश्चंस हो तो डालते रहना चैट में, विल टेक अ लुक आफ्टर इनकी छोटी सी प्रेजेंटेशन। मनस्वी। हाँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हम्म। स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ। ओके। Okay, so after these amazing insights into competitive programming and placements, we have one more exciting topic to talk about, CodeFile. So, as the name suggests, CodeFile is made for those who love to code. We made this app keeping in mind our own experiences, and we aim to make the process of starting competitive programming easy for the beginners.
what exactly does this app do? So it acts as a companion that you will use frequently while preparing for your placements or internships. It has features like submission feeds, contest reminders, dedicated profiles, and it will overall cater to all your needs which you face during the preparation phase. Let's get started with the most appealing feature of CodeFile, the personalized feeds. Uh, a user can choose to follow other users that he wishes to stalk. This can be used to see to access all the submissions made by an expert. जैसा अभी अनिकेत ने बताया था कि ये मतलब ऐसे पीयर पीयर प्रोसेस ग्रुप्स में काफी हाँ पीयर peer ग्रुप्स में process कोडिंग करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर हम लोगों के फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो अगर हम लोग उनकी प्रोग्रेस भी देखना चाह रहे हैं कि किसने किसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें ये हेल्प कर सकता है फीड वाला फीचर। सो और ये हर प्रॉब्लम के लिए आपको स्टेटस भी बताता है, जैसे स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि एक्सेप्टेड, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, ये सब बताता है। तो वी कैन एनालाइज कि कोई एक्सपर्ट की कॉन्टेस्ट डिक्लाइन क्या आइडियोलॉजी रहती है, कौन से क्वेश्चंस स्किप करता है, कौन से पहले करता है, एंड कहाँ पे उसको भी प्रॉब्लम आ रही है एंड हमें भी आ रही थी। तो ऐसे उससे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। और फ्रेंड्स का तो ऑब्वियसली तुम स्टॉक कर ही सकते हो, वो काफी मतलब काफी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, सभी करते हैं, सभी को जानना होता है कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो मुझसे आगे तो नहीं निकल गया, वो उसने जो क्वेश्चंस किए हैं वो मुझे तो करने ही है, एंड ऑल दैट। सो द नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टेस्ट अपडेट्स। मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव कोडर को बहुत सारे कॉन्टेस्ट तो देने ही होते हैं, क्योंकि that makes them ready for all those placement tests, क्योंकि 2 घंटे में प्रिपरेशन की जो प्रिपरेशन है वो काफी जरूरी होती है। कोडफाइल सारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उसके कॉन्टेस्ट सब कंपाइल करके एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पेज पे तुम्हें दिखा देता है। कोडसेफ, कोडफोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर स्पॉज, इन सब के कॉन्टेस्ट, इवन अदर्स, तुम्हें एक ही प्रोफाइल, एक ही पेज पे दिख जाएंगे। यू कैन सी द टाइम। ऑल्सो एक अमेजिंग फिल्टर फीचर है उसमें, जो अननेसेसरी बहुत लंबे कॉन्टेस्ट होते हैं, लाइक जो 1 ईयर चल रहे हैं या कॉटलिन या दूसरी लैंग्वेजेस में जो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, वो सब तुम फिल्टर आउट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सेट कस्टम रिमाइंडर्स कि मुझे 15 मिनट्स बिफोर द कॉन्टेस्ट रिमाइंड कर दो, सो देयर विल बी अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन की साउंड एंड ऑल तुम सेटिंग्स से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट फीचर है प्रोफाइल ऑफ अ यूज़र। सो यूज़र प्रोफाइल में हम लोग किसी भी यूज़र का यूज़र नेम, उसका इंस्टीट्यूट, वो कितने लोगों को फॉलो कर रहा है, ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में उसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में उसने कितने % करेक्ट सबमिशंस किए हैं। और यहाँ पर हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व भी दिखाता है कि कितने क्वेश्चन किस बंदे ने किए हैं सॉल्व डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस। सो ये सब हम लोगों को प्रोफाइल में दिख जाता है। और उसके साथ में हम लोग इंट्यूटिव ग्राफ्स दिखाते हैं, जो कि हेल्प करता है कि जैसे एक ग्राफ है यहाँ पर टाइमलाइन ग्राफ, तो उसमें दिखाते हैं कि कौन से दिन कितने सबमिशंस किए हैं और कितने करेक्ट सबमिशन है एंड कितने इनकरेक्ट सबमिशन है, जो कि हम लोगों ने कलर से कोड कर रखा है। तो रेड से दिखाता है कि वो इनकरेक्ट सबमिशंस हैं और ग्रीन मतलब कि वो करेक्ट सबमिशन है। तो पूरी होल टाइमलाइन में हम लोग देख सकते हैं कि किसी यूज़र ने कब कब क्या क्या सबमिशंस करे हैं। और इसके अलावा एक पाई चार्ट है जो कि दिखाता है कि हर एक प्लेटफॉर्म के अक्रॉस यूज़र ने कितने सबमिशंस कैसे कैसे वे में किए हैं, मतलब कितने उसके सही हुए हैं, कितने पार्शियली सॉल्व हुए, कितनों में एरर आया है। तो ये सब कभी पाई चार्ट बना है, तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। किसी को अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो फिर उसके लिए भी यहाँ से देख सकता है। एंड नेक्स्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर, काफ़ी कूल फीचर है, जो कि है सर्च फीचर। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र के हैंडल से हम लोग सर्च कर सकते हैं, या तो यूज़र के यूज़र नेम से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी फ्रेंड है, तो अगर हम लोगों को उसका कोडशेफ का हैंडल से लेट से पता है, तो हम लोग कोडशेफ का हैंडल यहाँ पर डालेंगे तो उसकी कोड फाइल की प्रोफाइल आ जाएगी।
तो हम लोग उसको यूज़र को फॉलो कर सकते हैं एंड उसकी प्रोफाइल भी हम लोग स्टॉक कर सकते हैं। तो किसी यूज़र को फॉलो करेंगे तो हम हमारी होम फीड में उसके सबमिशंस आ जाएंगे, और जैसा कि पहले बताया था, तो ये सर्च का फीचर हो गया। एंड दिस ऐप इज़ नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, we will post the link in the chat section. Also you could search Codefile on Play Store, तो वहाँ पर भी आ जाएगा। तो that is it from our side. Also ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने ओपन सोर्स भी कर रखा है, तो हमारी ओपन सोर्स की MDG कम्युनिटी का हम लोगों ने स्लैक चैनल का लिंक डाल रखा है हम लोगों ने, स्लैक वर्क स्पेस का, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो if you are interested in contributing to this project, so you are very welcome here. And soon we will also be releasing a blog on the development journey of our app, so please be sure to check that out as well. And मनस्वी कुछ कहना चाहेगा क्या? That's it from my side. Okay, so that is it from our side. Saurabh, you may continue with questions. All right. Shivansh, Aniket, आ जाओ. Guys, any other questions about CP or placements or internships? Anything? तो वो डाल दो chat में फटाफट. मतलब आई थिंक एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन कंपनी स्टार्ट टेकिंग टेस्ट फॉर प्लेसमेंट? सो प्लेसमेंट्स का ऐसा होता है कि इन योर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या इन योर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तुम्हारे वो होते हैं इन योर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यस अक्टूबर तुम्हारे वो रिज्यूमे वेरिफिकेशन होता है। फिर अराउंड 7-8 ऑफ अक्टूबर से तुम्हारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं एंड टेस्ट होते हैं अराउंड, मतलब वो चलते रहते हैं मतलब 30 नवंबर तक। बट इसमें इंटर्नशिप्स में क्या हो रहा था कि जैसे ही टेस्ट हो रहे थे फिर उन कंपनीज के इंटरव्यूज, बट यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे पहले सारे टेस्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यू शुरू होते हैं 1 दिसंबर के अराउंड। तो तुम्हारे टेस्ट मान सकते हो कि तुम 7-8 ऑफ अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ गुड कि तुम ऐसे सितंबर एंड तक प्रिपेयर कर लो सब कुछ। and make sure that you are updated with क्या टाइमलाइन चल रही है करंट सिनेरियो, क्योंकि कभी भी चेंज हो जाती है ये टाइमलाइंस, तो पता करते रहना। बट मोर और लेस यही रहती है, रहती है। मतलब एक वीक इधर या उधर, बट मोर और लेस यही रहता है। और शिवांश वो भी बता दे डे 0 डे 1 का क्या सीन रहता है प्लेसमेंट्स में? मतलब ये काफ़ी आईटी रूट की स्पेसिफिक है। तो डे 0 डे 1 का यही होता है कि डे 0 पे मतलब कंपनीज को ऐसे प्रायोरिटी वाइज बुलाते हैं टीपीओ। तो डे 0 पे थोड़ी कंपनीज आती हैं, फिर उसके बाद डे 1 में 3 स्लॉट्स होते हैं, 4 स्लॉट्स होते हैं, तो कंपनी स्लॉट वाइज आती है। तो ऐसा होता है एक स्लॉट में कुछ कंपनीज आती है, यू आर अलाउड टू सिट इन दैट स्लॉट, और अगर तुम उस स्लॉट में प्लेस हो गए तो तुम उसके आगे किसी स्लॉट में नहीं बैठ सकते हो। तो डे 0 पे ऐसा होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे साथ जो सबसे अच्छी कंपनीज है वो आती है, फिर ऐसे स्लॉट वाइज थोड़ा वो होता रहता है कि थोड़ी नॉट सो गुड कंपनीज आती है। बट ऐसा भी हो जाता है कि बाद में बहुत अच्छी कंपनीज आ जाए, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारी अगर शुरू में ना लगे तो बाद में कंपनीज नहीं आएंगी। मतलब थोड़ा बट ये हो जाता है कि नंबर ऑफ कंपनीज जो बाद में अच्छी आ रही है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इस टाइमलाइन के तुम्हें टीपीओ से मिलती रहेंगी, मतलब इसकी तुम्हें ऐसे वो टेंशन नहीं है, वो तुम्हें सब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी जाएगी। बाकी ऐसे एक और काफ़ी ओवरलुक्ड इन्फॉर्मेशन है बट काफ़ी मैटर कर जाते हैं कई टाइम्स पे, कि HR राउंड्स जो होते हैं इंटरव्यूज के, वो बिल्कुल ऐसा काफ़ी लोग प्रिपेयर नहीं करते, काफ़ी लोग बिल्कुल ऐसा उस चीज़ को देखते ही नहीं कि क्या कैसे वो करना है वहाँ पे। तो उस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए तुम थोड़ा ऑनलाइन रिसोर्सेज को वो कर लेना, फाउंडर थोड़ा देख लेना कि कैसे क्या नहीं बोलना होता, क्या बोलना होता है। मोर और लेस तुम्हें ये तुम्हारा ऐसा यूजुअली जब तुम HR राउंड में चले जाओगे किसी कंपनी के, तो तुम्हारा उस HR राउंड में कभी ऐसा उसमें तुम ऐसा कुछ नहीं बोल दोगे कि तुम्हारा उससे सिलेक्शन हो जाएगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता। HR राउंड में यूजुअली तुम कुछ ऐसा बोल देते हो कि जिससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। HR राउंड्स मेनली सिर्फ काटने के लिए होता है। तो तुम अगर नॉर्मल भी बोल रहे हो, तुम नॉर्मल बात भी कर रहे हो वहाँ पे और कुछ गलत नहीं बोल रहे हो या कुछ ऐसा बहुत अच्छा भी नहीं बोल रहे हो, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि HR राउंड तक पहुँचने का मतलब होता है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है,
क्योंकि वो मेनली कंपनी तुम्हें सेल कर रही होती है कि वो कंपनी क्या करती है, और वो फिर ऐसा वो रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे बस ऐसा बीच में इंटरेक्टिव बनाने के लिए सेशन को। बस फिर तुम उन रैंडम क्वेश्चंस का आंसर कुछ गलत कर दोगे अगर, तो तुम्हारा कट सर उड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा ये सब चीज़ें दिमाग में रख के जाना। हाँ और मतलब मेक एचआर श्योर यू शिवांश बाकी बता। जैसे तुम इंटरव्यूज में भी ऐसा अगर कोडिंग क्वेश्चंस को आंसर कर रहोगे तो एक ये चीज़ बहुत वो होती है, इंपॉर्टेंट होती है, पता होना कि यू टेल व्हाट यू आर थिंकिंग ऐसा व्हाइल द इंटरव्यू इज गोइंग ऑन। तुम बिल्कुल ऐसा साइलेंट रहोगे अगर 5 मिनट तक 10 मिनट तक, तो इट गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन। यूजुअली द इंटरव्यूअर डज नॉट वांट द करेक्ट आंसर और डज नॉट ऐसा, वो होप नहीं कर रहा होता है, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि तुम बिल्कुल एक्चुअल आंसर बता दोगे। अगर तुम बता पा रहे हो तो इट इज़ गुड, बट अगर तुम नहीं भी बता पा रहे हो और तुमने अपना थॉट प्रोसेस बताया हुआ है उस आंसर तक रीच करने का, और तुमने ऐसा अप डिफरेंट चाहे अनऑप्टिमल बट डिफरेंट अप्रोचेस बता रखी है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड एनफ। मतलब मैं एचआर के बारे में बोल रहा था कि इट इज इम्पोर्टेंट कि जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या वो सब प्रिपेयर करके चले जाओ। मतलब इंट्रो है, प्रिपेयर करके चले जाओ, या एक दो जो तुम्हें मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दिखे वो तुम प्रिपेयर करके चले जाओ। इससे क्या होता है कि इंट्रो तो तुम्हें पता ही है, हर कोई पूछेगा, तो एक बार तुम्हारी स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरे इंटरव्यू में कि हाँ मतलब। और अगर तुम्हारी स्टार्टिंग ही ऐसे फंबल हो जाओ तुम स्टार्टिंग में ही, तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अच्छा नहीं जा रहा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो बेसिक चीजें हैं वो तुम एक बार प्रैक्टिस कर जाओ। मतलब हमने भी ऐसा किया था कि हमारा इंटरव्यूज थे रात को 12 बजे से, हम रात को 8 बजे एक बारी मैंने और सौरभ ने ऐसे इंटरव्यूज प्रैक्टिस करी थी कि हमें बोलना कैसे है जाके। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब तुम्हारे इंटरव्यूज हो मतलब, तो तुम एक बारी प्रैक्टिस कर लेना किसी अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ। हाँ, मॉक इंटरव्यूज तो काफ़ी रिकमेंडेड हैं अगर तुम्हारे में कोई ऐसे दोस्त हैं जो तुम साथ में प्रिपेयर कर ही रहोगे मोस्ट प्रोबेबली, हाँ तो एक दूसरे के साथ मॉक इंटरव्यूज देना काफ़ी अच्छा आइडिया रहता है। काफ़ी वो हो जाता है आइडिया, एनवायरनमेंट का आइडिया लग जाता है। और मेक श्योर कि जो तुम इंट्रो दोगे वहाँ पे, तो उसमें तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाओ और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना दो। डिटेल इंट्रो मोस्टली तुम्हारा टेक्निकल होना चाहिए, प्रोफाइल रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें तुम्हारी हॉबीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बता दो तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बट बातें होती है कि 2 मिनट का इंट्रो एक्सपेक्ट किया जाता है, तो उसमें तुम जितना मैक्सिमम टेक्निकल थ्रो कर पाओ कि तुम्हारा क्या क्या एक्सपीरियंस है कहाँ कहाँ, तो वो आई गेस उतना बेटर होता है। हाँ और मतलब किसी भी फेज में अपनी लाइफ की जो कहानी है या जो सैड चीज है वो सुनाने मत लग जाना। इट्स वेरी वेरी बैड जो इंटरव्यू पर वो पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। मतलब वो ये सब नहीं सुनने आया है, तो वो मत सुनाना। वो ठीक है अभी। ही में हाँ बता बता। ही में से कि हाँ तुम कुछ भी बता सकते हो, बट ही डज नॉट वांट टू हियर इट। हाँ, ठीक है थोड़े क्वेश्चंस है मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ। इंटर्नशिप शाला, इंटर्नशाला की इंटर्न मेंशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक बंदा बहुत टाइम से पूछ रहा था अबाउट नेटवर्किंग की प्रोजेक्ट्स, तो हाँ कर सकते हैं। अगर तेरे को अच्छा प्रोजेक्ट करने तो इट्स बेटर कि तू फॉरेन किसी प्रोफेसर पे अप्रोच करे जो उसमें काफी एक्सपीरियंस्ड हो। पैकेजेस इन सीपी पूछ रहा है तो डिपेंड्स, 5 लाख के भी होते हैं 80 लाख के भी होते हैं। और मतलब उसका तो एक सिंगल सिंगल आंसर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट तो नॉन सीएससी से भी रिक्रूट करता है, तो इवन उसके लिए भी ओएस पढ़, या देख ये सब नॉलेज होना बहुत बेटर अच्छा रहता है। अगर तेरे को ओएस नेटवर्किंग की नॉलेज है, इवन इफ तेरे को मतलब तू उस कोर्स में नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो एक्सपेक्ट करता है कंपनी वाला, वरना वो तेरे को हायर क्यों करेगा। अगर तेरे को अगर वो सीएससी वो बंदा उठा सकता है तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना इज ऑलवेज गुड। आई एम नॉट टेलिंग यू कि जो तू किताब है वो तू एंड टू एंड रट ले, बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे प्रोसेस क्या होता है या फिर कंप्यूटर में मेमोरी क्या करती है वो सब तेरे को क्लियर होनी चाहिए। बाकी फॉर इंटर्नशिप्स दे डू नॉट एक्सपेक्ट ओएस, तो अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसा 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम बोल दो कि सर वो ऐसा हमारे कोर्स में नहीं था, तो वो तुमसे नहीं पूछेंगे और इट विल नॉट गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। बट अगर तुम प्लेसमेंट्स में आई हैव नॉट स्टडीड ओएस इज नॉट आंसर, वो पूछेंगे फिर भी, मतलब दे एक्सपेक्ट यू कि तब तक तुम पढ़ लो, पूछ सकते हैं, हाई चांसेस है।
ठीक है। हर्षित ने पूछा कि कंपनीज को कैसे रैंक करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। यार दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन व्हाट यू वांट। तो इफ यू वांट टू गो फॉर एसडी कंपनीज या एमएल कंपनीज, दैट इज एंटायरली अप टू यू। मतलब दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, सबके अलग प्रायोरिटी लिस्ट रहते हैं, मेरे और शिवांश के भी अलग थे और हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, उसमें हम कुछ इंडिविजुअली नहीं बता सकते। देखो अगर बैंक रोल्स में जाना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। हाउ टू डेवलप लॉजिक फॉर सीपी। यार लॉजिक मतलब वो इंट्यूशन सा ही होता है, जैसे अनिकेत ने बताया था, एंड वो प्रैक्टिस से ही आता रहेगा। तो प्रैक्टिस करते रहे, वो तेरे को आ जाएगा। रिकॉर्डिंग दे सकते हैं क्या? अरे बहुत लोग पूछ चुके हैं। रिकॉर्ड हो रही है, फिर सी की क्या करना है उसके बारे में। हाउ टू डेवलप लॉग ग्रेट एंड थैंक्स अप्रोच फॉर नेटवर्किंग। यार वो तो तू फॉरेन प्रॉफ्स का देख, उसका इधर हम बता नहीं पाएंगे। What are basic stuff to learn before contributing in open source? Nothing required. तू issues देख and उसके हिसाब से गूगल करना शुरू कर दे, तेरे को सब मिल जाएगा गूगल करके। Will not having internship my chances for good placement? Not really। मतलब मेरे पास इंटर्नशिप तो थी पर मैंने थर्ड ईयर में करी नहीं थी, मतलब टावर ने कैंसिल कर दी थी। तो तब इट डजंट मैटर, क्योंकि सब लोग समझ जाएंगे अगर तेरे पास नहीं भी है तो इट्स फाइन। डिफरेंस बिटवीन बट सी एंड सी प्लस प्लस फॉर सीपी। भाई सी में अगर तू कर रहा है ना तो सी यार कैसे कर रहा है? मतलब बिना स्टील के मुश्किल हो जाएगा। सी हाँ, में मतलब तुम्हें चीजें नहीं मिल पाएगी जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस प्रोवाइड कर देगा। तो तुम वो चीजें लिखने बैठोगे तो सॉर्ट मेजर करते टाइम रह वेस्ट, जाओगे भाई, सॉर्ट ही करते रह जाओगे। मतलब व्हाट आर बिल्कुल बेस। रिकमेंडेड नहीं है सी। हाँ एग्जैक्टली, सी प्लस प्लस मतलब आई सी वुड प्लस रिकमेंड प्लस तो हाईली। हाईली रिकमेंडेड। Basic stuff. Okay. Can you talk about timeline you used? Which topic, how much time, and when to study it? यार टाइमलाइन तो क्या था, पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे समर्स में, एंड समर से थोड़ा लेट तक। फिर धीरे धीरे सीपी के मतलब कॉन्टेस्ट दे रहे थे एंड इंटरव्यू बेट लीड कोड कर रहे थे। एंड देन थोड़ा बहुत मतलब ऐसे तब तक आइडिया नहीं था कि कौन सा टॉपिक ज्यादा करना चाहिए। थोड़ा सीनियर से बात करी थी तो थोड़ा क्लियर हो गया था कि डीपी एंड ग्राफ्स पे ज्यादा फोकस करना है इस बार। मोर ऑन ग्राफ्स प्लेसमेंट्स में, एंड मोर ऑन डीपी फॉर इंटर्नशिप्स। एंड उसके साथ साथ ओएस एंड ऑल स्टार्ट कर दिया था। एंड ओएस मतलब बाकी सीएस के टॉपिक्स हमने हेवीली करे थे नवंबर में, जस्ट बिफोर द इंटरव्यूज। और और एक रिसर्च और इंटर्न चीज के लिए क्या करना होता है? अच्छा हाँ पता, शिवांश तो पहले बता। मैं बोल रहा था, वो क्या skip? हाँ, एक और चीज होती है प्लेसमेंट में, एक वो होता है, ग्रुप होता है जो तुम्हें पता लग जाएगा बाद में, प्लेसमेंट डॉक्स नाम का, इंटर आईटी प्लेसमेंट समथिंग। वहाँ पे क्या होता है हाँ कि बाकी जगह सेम कंपनी आती है तो उनके क्वेश्चंस डबल होते हैं। तो काफी बार ये चांसेस आते हैं कि वो सेम क्वेश्चन आ जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि हर साल ना हैकर अर्थ या हैकर रैंक पे एक होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और कम मतलब तो चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। तो ये रिकमेंडेड होता है कि तुम एक बारी वो देख लो, और तुम प्रीवियस ईयर्स के भी सेम कंपनी के क्वेश्चंस देख सकते हो, तो तुम्हें एक लेवल का आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। तो जस्ट बिफोर द टेस्ट तुम उन्हें देख सकते हो एक बारी। बाकी अगर शिवांश सर रिसर्च इंटर्न कहाँ? ठीक है बाकी अगर अनिकेत, तो एक तुम्हें और ऐसा बता एक यार। टॉपिक वाइज वो चाहिए कि किस टॉपिक को कितना टाइम लगेगा, तो उसमें बेटर ये रहेगा कि पहले तुम थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में पूरा सारे टॉपिक्स गो सिलेबस। थ्रू कर दो। फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें किस टॉपिक को कितना टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बाद में तुम बफर एक बना के रखना कि हाँ दिस बफर विल बी यूज्ड, कि जो टॉपिक्स मेरे बचे हैं अभी। उनको स्ट्रॉन्ग करना है। शिवांश रिसर्च इंटर्न के लिए क्या करना होता है? मतलब अगर एनी जी मतलब जो मेरी रिसर्च इंटर्न थी वो काफी डिफरेंट थी। मतलब वो एडोबे रिसर्च क्या सीजी के बेस पे उठाती थी, तो उस टाइम तो फिर कुछ नहीं करना था, बस सीजी चाहिए थी। बाकी अगर तुम्हें फॉरेन रिसर्च इंटर्न लगवानी है तो फिर शायद तो फिर सौरभ बता पाए। देखो, या थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस होना ऑलवेज अच्छा रहता है। एंड डोमेन देख लेना, तुम्हें एमएल में करनी है तो काफ़ी प्रोफेसर्स कर रहे हैं आजकल उसमें। बाकी डिफेंस नेटवर्क, हर एक टॉपिक में डोमेन में मिल जाएंगे प्रोफेसर्स, उन्हें रीच आउट करो। काफ़ी रिजेक्शंस भी मिलेंगे बट कोई ना कोई तो धीरे धीरे मान ही जाता है कि
okay, you can do this project with me. अगर तुम्हारे पास अपना आइडिया है तो pitch that, वरना बोल दो कि I'm very interested in this topic and मैंने इसमें ये सब projects दिए हैं, send your resume and all. तो फिर have a nice discussion and फिर उसके हिसाब से you can get a project. आयुष ने पूछा है कैन वी स्टार्ट सीपी इन जावा? यस यू कैन, बट हो सके तो C++ कर ले, बट यू कैन ऑब्वियसली जावा भी मतलब ठीक है, काफी अच्छे कोडर्स करते हैं जावा में भी, ऐसा सच कोई इतना वो नहीं है, लोड नहीं है तुम जावा में स्टार्ट, बट देन अगेन अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज रिकमेंडेड सीपीपी करो। अगर तुम बहुत ऐसा लेट से तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और तुम काफ़ी आगे चले गए हो जावा में करते करते, तो इट इज़ फाइन कि तुम जावा में कंटिन्यू करो। मतलब अगर तुम्हें बहुत हायर लेवल पे जाना होगा तब जाके हाँ फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है फिर, बट ऐसा मीडियम लेवल या आईसीबीसी लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं। प्लेसमेंट है आईसीपीसी लेवल पे तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि हाँ इट इज रिकमेंडेड, सीपीपी इज रिकमेंडेड, बट ऐसा प्लेसमेंट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी मोर और लेस। बट हाँ अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज बेटर टू स्विच। Okay. We have a question. Should we tell the interviewer about PPO? It is depends on the question. नहीं हाँ मतलब ये इसके दो मतलब हो सकते हैं कि एक तो मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और तुम्हारे पास पहले से पीपीओ हो, तो उस केस में तो मोस्ट प्रोबेबली तेरे को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि तेरी गारंटी नहीं है तो आएगा कि नहीं आएगा। और मतलब नहीं बताना चाहिए, प्लस पॉइंट तो शायद मेरे को नहीं दिख रहा कोई इस चीज का। मतलब जब तक कोई दूसरा बंदा ये रेज अगर वो जब तक वो रेज ना करे तब तक तेरे को रेज करने की कोई नीड नहीं है इसकी। मतलब जैसे लेट से अगर उन्होंने ये बोल दिया कि वी हैव हर्ड दैट यू हैव गॉट अ पीपीओ फ्रॉम दिस, जो नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली उस पे इंफॉर्मेशन ऐसी, बट अगर वो बोल दिया तो ऐसा मत बोलना कि नहीं नहीं सर नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, क्राइम नहीं है, बट ऐसा सामने से मत बता, मेंशन करना पीपीओ कि हाँ हम पे पीपीओ भी है इस कंपनी का, तो ये नहीं होगा कि वो इस कंपनी का पीपीओ इसको मिला हुआ है तो ये अच्छा होगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता। Rahul asks, is it good to have WebD project for resume? हाँ सही है। Can you post the link for that group? Yes. यार वो प्राइवेट ग्रुप है तो मे बी आस्क अ सीनियर और समवन, क्योंकि मोस्ट लोग होते हैं उस ग्रुप में, तो वो हाँ, मतलब उस फेसबुक ग्रुप में अभी जरूरत भी नहीं है उसकी, मतलब हाँ बोल उस टाइम देखना जब तुम्हारे टेस्ट पे स्टार्ट हो रहे हो और हाँ मतलब इंटरव्यूज अक्टूबर में सितंबर एंड में देखना, अभी वो ग्रुप बायस ही कर देगा तुम्हारी प्रिपरेशन को, तो उसमें लोग ज्ञान देते रहेंगे, इट्स नॉट गुड। अभी if I have a profile, suppose MLDL, do I have to stick to it या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी टेक अप कर सकता हूँ? You can take up but you मतलब you can also stick to it, makes little difference। ठीक है, that depends on तेरा इंटरेस्ट क्या है। हाँ ये चीज तो हम भी पॉन्डर कर रहे हैं, अगर हम पे MLDL जॉब है तो हम कैन वी स्टिक, डू वी हैव टू स्टिक टू इट या स्विच कर सकते हैं? तो कर ही सकते हैं, मतलब लोग कंपनीज में करते हैं तो हाँ सही है। Activities of Codeforces is not matching on Codefile, इशू रेज कर दे। GSOC and internship prep को कैसे मैनेज करूँ? हो जाती है। देख GSOC तेरा उतना टाइम थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बट इस बार तो प्रोजेक्ट्स भी थोड़े छोटे हैं। हाँ मतलब इस बार वो बोल ही रहे 25 आवर्स की डेडिकेशन है, तो फिर तुम उतना ही दो, बस उससे ज्यादा तुम दो मत। अगर वो बोल रहे हैं कि दे एक्सपेक्ट कि तुम वीक में 25 आवर्स दो, तो उससे ज्यादा तुम दो भी मत। मतलब बेयर मिनिमम दो GSOC को, बाकी इंटर्न प्रेप करो। हाँ क्योंकि हो जाता है GSOC में इतना वो नहीं आता है लोड। If I am only doing CP and I want to do some project, then how do I choose one? Depends देखो किस चीज में इंटरेस्ट है, बट आई वुड रेकमेंड कि प्रोफेसर को रीच आउट करो, उनके पास हमेशा प्रोजेक्ट्स होते हैं। कैन यू रिपीट इन्फो अबाउट HackerRank एंड HackerEarth? इसके बारे में कुछ बताया था क्या शिवांश? मतलब बस एक इंट्रोडक्शन दिया था। मतलब HackerEarth पे रिसोर्सेज हैं, कुछ टॉपिक्स के अच्छे रिसोर्सेज हैं जैसे DSU वगैरह के, तो यू वो कैन बता रेफर रहा था दैट कि कंपनी का शायद वो होता है, वो तो नहीं पूछा।
नहीं नहीं कंपनी के प्रॉब्लम्स उसी सेट में से आते हैं सब। अच्छा वो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। मतलब बात ये होती है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अगर मतलब जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं हर साल ऐसा सुना है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिनमें से ये रैंडमली देते हैं। मतलब अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके एक सेट में से आ रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन किसी और कंपनी में आ चुका है वो तुम्हारे किसी फ्यूचर टेस्ट में आ जाए। तो तुम जब उस डॉक को पढ़ो, एक बार स्क्रॉल करो, तो बाकी सब कंपनीज के भी क्वेश्चंस देख सकते हो। बस इतना ही था। What are the add-ons on doing masters as compared to bachelors? यार आनंद, इसका आंसर इस टॉप के लिए है नहीं, बट फॉरेन में कर रहा है तो अच्छा है, उधर जॉब मिल जाएगी तेरे को। इंडिया में कर रहा है तो अच्छे कॉलेज से करेगा तो उधर भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तेरे को रिसर्च बट करनी है हाँ, तो ट्राई फॉर सीधा थोड़ा पीएचडी। एक फर्क ये होता है बस कि जब तक तुम बैचलर से कभी एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ नहीं पाओगे। तुम्हें काफ़ी कंपनीज में ऐसा हायर एजुकेशन के बिना एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इट इज़ गुड अगर तुम मास्टर्स या फिर पीएचडी करना चाहते हो। फॉर मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च, पर वो पता कर लेना कि किस लिए कर रहे हो तुम, ऐसे अंधाधुंध मत करना कि बस करनी है ना। बट या काफी काफी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ पीएचडी और मास्टर्स वाले लोग को लेती हैं। आर ऑनलाइन पेड इंटर्नशिप्स गुड इफ वी वांट टू लिस्ट इन रेज्यूमे? अरे एंजल लिस्ट है, किसी से कर ले यार, वो लोग पैसे दे देंगे, तेरे को क्यों पैसे देंगे? नहीं अगर तो ये पूछ रहा है तो अगर वो पैसे दे रहे हैं तो हाँ यार इंटर्नशिप कर लो, अगर रेज्यूमे में डालनी है तो। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम किसी को पैसे दो और फिर तुम इंटर्नशिप करो, क्योंकि टेक में बहुत सारी इंटर्न्स मिल जाती हैं ऐसी। मतलब पेडलेस तो बहुत इजीली मिल जाएगी। पेडलेस तो वो हाँ। दे ही देंगे। और तुम्हें इंटर्नशाला पे पेड भी मिल जाएगी ऐसा। इंटर्न की बात ये है, तुमने अगर काम अच्छा करा है तो तुम डाल दो। बट हाँ, मतलब काम की इंटर्न तुम ऐसा तैयारी के कॉस्ट पे मत करना कि एक इंटर्न के चक्कर में तुम तैयारी फकअप कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली। ग्राफ्स में कितनी डेप्थ में जाना होता है? शिवांश, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों का बता दे यार। मतलब प्लेसमेंट्स का बताता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ग्राफ्स एक बार कवर करना है तो CACS पे जो ग्राफ्स है ना वहाँ चले जाना, मतलब cacs.fi पे, और वहाँ पे तुम स्टार्ट कर देना जहाँ तक तुम जा सको मैक्सिमम कर लेना, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है और काफ़ी एग्जॉस्टिव सेट ऑफ प्रॉब्लम है। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हें ग्राफ की एक बारी वो लेनी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो तुम CACS पे जा सकते हो। बाकी लीड कोड तो है ही नहीं, तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करनी है लीड कोड पे कर लो बाकी। बट अगर तुम्हें ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना है तो तुम CACS पे जा सकते हो। और इंटर्नशिप्स पे का मुझे ज़्यादा आइडिया है, मतलब मैं बता उसमें देता इतनी हूँ डेप्थ में नहीं इंटर्नशिप आते। के। हाँ, इंटर्नशिप में अगर तुम्हें ग्राफ्स करने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो BFS DFS के आगे नहीं पूछते एग्जैक्टली। ज्यादा। तब अगर किसी मतलब कंपनी को तुम्हारी मारनी होगी तो पूछ लेंगे, बट नहीं पूछते, वो और डीपी पे ज्यादा प्लेसमेंट में फोकस एक चीज़ करते ये हैं। है कि हाँ DSU कंफर्म आता है हर कंपनी में, मतलब हमारे वही टाइम पे तो आया DSU काफ़ी इम्पोर्टेंट, डिसजॉइंट सेट यूनियन पढ़ है, लेना जरूर। प्लेसमेंट्स के वो लिए बहुत हर जगह इंपॉर्टेंट आता होता है। है। नॉन सीएससी ब्रांचेस के लोग भी CS प्रॉफ्स के अंडर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? यस। या फिर रिस्पेक्टिव नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम कर मतलब सकते ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज रात बाला सर पे 200 लोग पहुंच जाएं, बट कर सकते हो तुम हाँ मतलब डेफिनेटली। हो सकता है तुम्हें थोड़ा थोड़ा पिच करना पड़े, बट हाँ तुम कर सकते हो, बहुत लोग हाँ, करते हैं। बहुत लोग करते हैं। मतलब तुम अगर प्रूव कर पाओ प्रॉफ को कि तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है उसकी फील्ड में, या हाँ तुम्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उसकी फील्ड में, तो वो दे देगा। उसको कोई वो नहीं होता। बहुत माइनर गाइडेंस ज़रूरत होती है प्रॉफ को देने की। आनंद कुमार, व्हाट आर टॉप स्पेशलाइजेशंस इन मास्टर्स? यार नहीं पता हमें, हम बैचलर्स वाले लोग हैं यार, सॉरी। चलो मतलब सीनियर्स 11 को o'clock। कंसल्ट कर लो, वो तो एग्जैक्टली। मिल जाएंगे। कॉलेज, अपने कॉलेज मतलब आईटी रुड़की के किसी एमटेक वाले बंदे को वो कर ले, या फिर मतलब आई हैव नो आइडिया किसे पूछना चाहिए, बट प्रोबब्ली समवन मास्टर्स जो तो मास्टर्स कर जैसे रहे हैं। अगर तुमने सुना हो नाम तो ऐसा, जैसे कई हैं, गोपी किशन, नतांश माथुर, निकुंज गुप्ता, इनको कंसल्ट कर सकते हो। ये सब अगर तुम्हें इसी बाहर चीज़ जाना पे है। एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, सही लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आने खत्म हो गए हैं। एनी लास्ट आउट ऑफ क्वेश्चंस? सो वी कैन आंसर 2-3 मोर क्वेश्चंस, फिर खत्म करते हैं, या फिर वी कैन एंड नाउ। लेट्स वेट फॉर लाइक
a minute or something. Can you name again, please? I'll type. Nikunj Gupta. निकुंज का नाम How much time is ideal to dedicate for CP? अभिषेक जितना हो सके that is मतलब it's like मिनिमम मैक्सिमम करने का कुछ पॉइंट नहीं है बट से 2-3 आवर्स कर 2-3 आवर्स भी काफी होता है बट मतलब ऐसे बिल्कुल ना करे या पूरा दिन करे उस दोनों के बीच में कहीं पे अपना बैलेंस देखिए. हाउ टू कनेक्ट विद यू गाइस? फेसबुक पे कर सकते हो ऑल्दो ठीक है. बट और वही है कुछ कि पूछा है क्या? there are limited number of requests or DMs that we can handle. हाँ मतलब ज्यादा स्पैम करने का पॉइंट नहीं, हम सबके प्रॉब्लम आंसर नहीं कर पाएंगे. साइट टू स्टडी ग्राफ्स पार्ट ओए CSES.5 बोला था ना. हाँ यही CSES.fi एंड सुरजोत वो एक मतलब CP एल्गोरिथम्स भी हमने बताया था तो CP हाँ एल्गोरिथम्स पे तुम्हें पढ़ने को बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे. CSES पे प्रॉब्लम सेट बहुत अच्छा मिल जाएगा. ठीक है. स्पेशली हाउ मच ट्रीज और टाइम? ग्राफ्स का Yeah, exactly. How much time to spend on a particular question depends on you. आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में दे ले, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन दे के किसी से बात कर. और उस पर भी अ, डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. अगर तुम मतलब इजी अगर लेवल का तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उस पर तुम 1 घंटा दे रहे हो तो गलत है. मतलब हाँ, तुमसे हो जाना चाहिए वो आधे घंटे या 15 मिनट में. बाकी एक बंदे ने पूछा था टेस्ट्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते कोड फोर्सेस के हिसाब से, तो आई वुड से Internship div D, to C. D. Internship div to D. डी और बहुत कम D रीच तो करेगा. बहुत मतलब टफ सी होता है भाई. C सी C D C to D. C to easy C D. to D. हाँ हाँ. मतलब और बट प्लेसमेंट डिपेंड करता है. आजकल कोड फोर्सेस पे थोड़ा एडहॉक आने लग वही गए थे इजी होने लग गया है थोड़ा तो इसीलिए और एडहॉक टाइप आने लग गए थे. मतलब तुम इंटर्नशिप जो मतलब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के टेस्ट होते हैं ना उनमें सी वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं. मतलब जो तुम्हें कोड फोर्सेस पे जनरली दिखेंगे. मतलब उन पे थोड़े वैसे वाले एजुकेशनल टाइप क्वेश्चन आते हैं जो एजुकेशनल राउंड में हो गए. on when practicing on code forces try करो कि educational rounds तो educational rounds code forces ज़्यादा प्लेसमेंटशिप सेंट्रिक होते हैं क्योंकि वो एजुकेशनल राउंड्स में थोड़ा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं और उनमें फिर तुम टारगेट कर सकते हो डी से ऊपर इंटर्नशिप के लिए ज़रूरत नहीं है और प्लेसमेंट के लिए ई से ऊपर ज़रूरत नहीं है. ई भी रेयरली. एक क्वेश्चन है, शुड वी नो मोस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स ऑन ग्राफ में आई थिंक फ्लो कट से पहले वाले सारे आने चाहिए. हाँ फ्लो फ्लो कट के वगैरह बाद तो नहीं बहुत पूछते हैं कॉम्प्लेक्स इससे हो पहले. जाते हैं. नहीं पूछते हैं, कोई नहीं पूछता है. लो नहीं और पूछते. स्ट्रिंग्स में देख KMP वगैरह तो आने चाहिए. हाँ मतलब तुम जितना सोच रहे हो उतनी ज़्यादा ऐसी एल्गोज है नहीं. हर एक टॉपिक में तुम्हें गिनती की 4-5 एल्गो मिलेंगी और बहुत ही सिंपल होंगी वो. और मतलब तुम्हें ऐसा होगा कि जो एल्गोस कॉमन है तुम्हें उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे. तो तुम्हें वैसी बाय हार्ट हो जाएंगी वो सारी. चूज वन लीड कोड और कोड फोर्सेस. कहाँ लीड कोड सवाल पूछा है. for नहीं डिपेंड्स placements and डिपेंड्स internships. अब CF for contest. एग्जैक्टली हाँ. मतलब लीड कोड फॉर प्रैक्टिस और CF फॉर ऐसे प्रैक्टिस. मतलब कि 2 घंटे में कैसे टाइम प्रैक्टिस. मतलब कॉन्टेस्ट देने के लिए हो जाएगा. रोड मैप ऑफ DSA एंड CP हमने मोस्टली Interview बता bit. दिया है, बाकी इंटरव्यू बिट फॉलो करते पूरा सब है उसमें. हाँ मतलब इंटरव्यू बिट पे ठीक है. प्लेसमेंट यार देख, तेरे को सिर्फ एक ही करना है, तेरे को दोनों में से एक ही उठाना है तो लीड कोड के सवाल कर और लीड कोड के कॉन्टेस्ट कर. बट आई वुड रिकमेंड कि तू कोड फोर्सेस के भी कॉन्टेस्ट कर. हाँ मतलब ठीक है. लीड कोड के कॉन्टेस्ट होते हैं जो वो भी ठीक होते हैं. मतलब 4 क्वेश्चंस एंड शायद 1 घंटे का राउंड का टाइम रहता है. मतलब बस ये है कि कोड वो भी ठीक फोर्सेस पे रहता है. तुम्हें compete करने के लिए ज़्यादा ऑडियंस मिल जाएगी तुम्हारे साथ तो खाली तो मतलब तुम्हें कहाँ स्टैंड करते हो वो ज़्यादा बेटर पता चलेगा और प्रेशर और वो सब भी रेटिंग की वजह से तुम्हें ऐसा हैंडल करने का वो होगा थोड़ा. और लीड कोड के कॉन्टेस्ट थोड़े ऐसे होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं और फिर जो लास्ट क्वेश्चन होता है हार्ड वो नहीं ही होता है. मतलब हो जाएगा तुमसे कई बार बट नहीं भी होगा. तो ग्रेडियंट थोड़ा अच्छा नहीं होता है. मतलब बेस्ट वुड बी कोड फोर्सेस एजुकेशनल कॉन्टेस्ट को वर्चुअल दो.
दक्षित ने पूछा div 2 कोड फोर्सेस वर्थ इट है कि हाँ div 2 की बात कर रहे हैं हम, div 3 तो थोड़ा हाँ, इजी हो जाता वही है, देना। div 2 की बात हो रही है। div 3 नहीं देना। div 1 होना नहीं है। div 1 होगा तो अच्छा div 3 तुम कॉन्फिडेंस हो रहा है तो बूस्टर्स अच्छी की बात तरह दे सकते हो। चलो ठीक है, एक लास्ट सवाल आया था अपने पास कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, या हमारे रिटन सवालों में आया है तो बताओ भाई। मेरे में तो नहीं है, देखो। मेरे में भी नहीं है। चलो ठीक है, आई चलो यार ठीक होप है। ये आंसर तुम्हारी प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। कल को किसी ने यस पूछ लिया तो। हाँ भाई, लिख लो भाई, क्या पता यूपीएससी में ही आ जाए। हाँ वही। चलो यार ठीक है, अभी वाइंड अप करते हैं, और कुछ पूछना हो तो हमारे जो फेसबुक पोस्ट था उसके कमेंट्स में डाल देना, विल टेक अ लुक। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू गाइस एंड हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, अच्छे से करना, एंड थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है बट ट्राई टू कोप अप जितना भी हो सके, है ना। ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय। okay bye Bye, guys.